Yeah. Visible? Yeah, visible. Okay, fine. Thank you. And before I start again, thanks to Mr. Kothari for giving me this opportunity to speak on tax on dividend. I've added dividend because there was no tax till year before last. It has started. So I have also included dividend issue here. And kitne tax hoga, equity mein kitna, and what about the derivative? So the disclaimer is that this Zoom presentation is based on my personal knowledge and experiences, as well as information collected from sources believed to be true. It is recommended that final confirmation of the content may be taken from your chartered accountant. Now, what happens? I was also serving at times, I was also doing F&O. And being a taxpayer, what is there? Because, you know, our income tax return is filed with the help of some of our colleagues in the corporate world. And when you see that in F&O, there is not much profit or there is a loss, we don't report it. But let me tell you that any F&O we do, any trading we do in Forex, any trading we do in a commodity, the information is with the government. And if they see that it is not disclosed in your income tax ITR, you may get a letter from income tax department that you have traded in future and option, but you have not reported the same. And so this is something you must remember, because the people, those who are working, those who are serving, they should disclose their profit and losses from future and option in their ITR. Number two is that when it is done, it is to be reported as a business. We all had doubts when we started future option about 7-8 years back, and I'm doing it for more than 10 years. So it is a speculation, or actually it is a business, or it is something else. Because you are not taking any delivery. We are all told, if you do not take any delivery, that is a speculative thing. It is speculation. So in future and option, we don't take any delivery. So for that, अच्छा मैं इसको इंग्लिश में बोलूं या हिंदी में बोलूं? There is some background noise. Can it be muted, please? Yeah, muted. Muted. Yeah. Should I speak it in English, Hindi, or only English or Hindi? English, Hindi, sir. Combination will be fine. English, Both, sir, both. Whatever you are comfortable in, Mohanty sir. मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ. Both. और एक तीसरा लैंग्वेज में भी चलो. ओडिया में बोलो, no problem, I'll understand. जी को बड़ा मजा आ जाएगा. Mix of both. Okay, thank you very much. So क्या होता था? तो future option, now it has been very clearly it is defined that future option trading is a business. तो जैसे कि आप कोई भी चीज का बिजनेस करते हो, जैसे कि बताया कांदा का प्याज का बिजनेस करना, जैसे बताया एग्जांपल, तो ये भी एक बिजनेस है. तो आप अगर ये बिजनेस कर रहे हो तो डिपेंडिंग अपॉन आपका बिजनेस इनकम कितना है, उस हिसाब से यू हैव टू फाइल ITR 3 और ITR 4. उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा किसको ITR 3 करना है, किसको ITR 4 करना है. So I will tell you, I will cover this last part of the presentation. Now separate stock trading and investment. What happens when we do trading in multi-phase? We also invest in share. At times, we are also tempted by the share movement. We do intraday also, and all of us, we are present in this group. We all do derivative. There are three different things. Equity, you will be taxed as per short-term gain or long-term gain, जिसको capital gain tax में आ जाता है. Number two, if you are doing an intraday in shares, it is a speculative thing. It is a speculative income. And number three, if you are doing derivative trading, and even if it is intraday, derivative trading intraday is also business, and derivative trading positional is also business.
So let me make it clear. Derivative trading, whatever you do, it is all business income. Now, how to take benefit of losses? Provision relating to set off and carry forward. The single most important reason to file the future and option trading is being able to benefit from the losses you have incurred. It is not necessary that everyone makes profit from this. Of course, as an option wheel trader, we have got to do that consistently. We should be coming out of the year with profit. But there are people who also make loss in derivative trading without knowing the nuances of derivative trading. So in such case, if you have got a loss, supposing 3 years back you had a loss, 1 year back you had a loss. Actually, I had about 2 lakhs loss. I will be setting it off this year's my profit. So it continues. Your loss be carried forward for 8 years, and any year you make an excess profit, in that year you can adjust this loss. So future and option trading loss is considered as a non-speculative intraday stock, and any loss you can also adjust it from the income except salary income, like rental income or interest income. If you have got any interest you are paying or you are getting house rent income, this loss can also be adjusted against this. Expenses that can be claimed by you. This is very important. If you are going to make profit in derivative trade and we have to pay business tax relating to business, what happens? जब आप बिजनेस के लिए आप टैक्स मोदी जी एक मिनट आप ये कह रहे हैं कि एफ&ओ का जो लॉस है वो मैं 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, yes, और जो मेरा शेयर्स में जो लॉस है वो 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो अलग अलग है। मतलब शेयर्स का जो लॉस होगा वो 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। हाँ, शेयर का भी तो मैं लिखा हूं ना कहीं। हाँ, आपने लिखा है ना कि अनएडजस्टेड स्पेकुलेटिव लॉसेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू 4 इयर्स। दैट मींस कि जो मैंने शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग किया है और उसमें अगर मेरे को लॉस हुआ है, दैट आई कैन कैरी फॉरवर्ड ओवर 4 ईयर। करेक्ट? वो सेंटेंस कहां उसमें लास्ट प्रीवियस स्लाइड में है क्या? ना, ये लास्ट में लिखा आपने, लास्ट में। Yes, sir. I'm not talking about speculative losses, मतलब क्या जानते हैं, जो इंट्राडे शेयर में जो प्रॉफिट लॉस होता है। हाँ, तो जो मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग किया है मैंने शेयर में, only 4 years, that is not 4 ईयर कर सकता हूँ, और एफ&ओ का जो मुझे लॉस हुआ है वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। एकदम 8 इयर्स तक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, और जो लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो लॉस हुआ है, वो भी 8 इयर्स होता है। दैट इज आल्सो 8 इयर्स। वो वाला 8 ईयर, दैट्स आल्सो 8 इयर्स। जो मेरे शेयर में अगर मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल शेयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, लॉस हुआ है, तो आई कैन कैरी फॉर 8 ईयर। यस, दैट यू कैन डू। ठीक है, अब उसको ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस कर रहे हैं मतलब अगर 30% टैक्स दे देंगे, आई टोल्ड यू that it is a gray area, some people say, but actually I have been told, and I have also they have also shown me the what do you call that, notification of the income tax department, which says if you are not holding your equity trading for a longer period, ये नहीं कि आप वहां का लॉस डेरिवेटिव के साथ इक्विटी को भी आप एक डेरिवेटिव एडजस्ट करते हो और इक्विटी भी सेल कर लेते हो या बाय करते हो, इसको करते हो, एंड कंटिन्यूअसली यू डू इट, एंड एवरी मंथ योर टर्नओवर इज हाई, वेरी हाई, टू मेनी ट्रांजैक्शंस आर देयर। इन दैट केस योर इक्विटी टर्नओवर एंड इक्विटी प्रॉफिट एंड लॉस विल आल्सो बी कंसिडर्ड, इट विल बी डीम्ड एज बिजनेस इनकम, जो कि मेरे केस में एक्चुअली हो रहा है। So now how I save myself? So what I do or what my chartered accountant he does. तो इसमें क्या करते हैं, मैं कुछ प्रैक्टिकल, कुछ चीज मैं यहाँ लिखा हूं और कुछ चीज मैं आपको बताऊंगा। There will be little difference because when I send a slide to somebody, I have to be exactly what is there in the law that I have written, but certain thing also you can
claim for it. Your chartered accountant will tell you, he will be the much better person than me to tell you what are the other thing also you can deduct from your profit. Now, what you can deduct, brokerage वगैरह तो आप तो नेट हो ही जाता है. Then subscription to journal relating to trading. Supposing at time आप क्या करते हो, investing.com या TradeEdge, ऐसा कुछ साइट्स है जिसके लिए कि आप पैसा देते हो, एनुअल फी, मंथली फी, या आप एल्गो ट्रेडिंग करते हो, उसके लिए कुछ पैसा देते हो. तो वो सब जो चीज होता है उसका जो कॉस्ट होता है ना, दैट यू कैन डिडक्ट. इट इज एन एक्सपेंसेस, यू कैन डू दैट. सिमिलरली यू हैव गॉट टेलीफोन बिल्स. आपके घर में ब्रॉडबैंड होगा, भले उसमें आप नेटफ्लिक्स देखते हो और साथ में ये काम भी करते हो, सो उसका जो महीना का जो 1000 रुपया का जो खर्चा आता है, या जैसे कि मेरे पास 2 अकाउंट है तो हम लोग दोनों काम करते हैं, तो हम लोग का सबका, सो ऑल दोज एक्सपेंसेस कैन आल्सो बी टेकन. कंसल्टेंट चार्जेस, सम पीपल यूज कंसल्टेंट एंड उसको कुछ पैसा देते हैं, दैट मनी आल्सो कैन बी डिडक्टेड. नाउ सैलरी ऑफ ए पर्सन यू हैड टू हेल्प यू विथ योर बिजनेस. तो मैं बताता हूं, दिस इज माय होम एंड ऑफिस बिजनेस, थोड़ा ध्यान में सुनिए. तो मैं एक्चुअली आई पे समबडी 10,000 रुपीज, वो मेरे को वो मेरा ड्राइवर भी है, घर का भी जो साफ सफाई, मेरा टेबल लैपटॉप वगैरह वो सब देखते रहता है. सो दैट अमाउंट व्हिच आई पे हिम 1,20,000 प्लस बोनस जो भी देता हूं, 1.5-2 लाख रुपया साल का देता हूं, दैट इज ऑल्सो डिडक्शन. आई क्लेम एंड आई गेट इट एवरी ईयर, आई गेट इट. प्लस बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या देखता है कि भाई अगर कोई चीज आप रीजनेबली आप डिमांड करते हो ना, दे अलाउ इट. एंड इट इज नॉट दैट you go to a hotel and spend some money and you say that with my client or with my what do you call that, my colleagues, I was spending that amount. Probably that kind of thing will not be adjusted, but normally there are quite a few things are there, so you can claim. और आपका जो प्रॉफिट है जिसके ऊपर 30% टैक्स लगने वाला है एंड योर टर्नओवर, उसके बारे में तो हम बात करेंगे. तो उसके एक रीजनेबल लेवल में जब आ जाओगे तो योर टैक्स आप देखोगे 15-20% आप दे रहे हो, नॉट मोर देन दैट. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स. बट Mohanty sir, what about house rent? Supposing you have office from where you are doing this yes, business. you can deduct. House Okay. rent can be deducted. Office rent can be deducted. But the house rent can be deducted. Not the full proportional you can reduce. Full 100%. If you have got an office from where you are operating, then office साफ सफाई के लिए अगर कोई रखे हो, कोई क्लीनिंग स्टाफ रखे हो, then उसका भी आप पैसा क्लेम कर सकते हो. Only thing is that if you are paying anything more than 10,000 rupees, then you must give it by check, और आजकल तो ऑनलाइन भी ओके होता है. So you must have a record of it that you are actually paying. ये बात नहीं कि मैं सब झूठे झूठे कर दिया. तो What about laptop or PC? Yeah, laptop. If it is related to your business, you are buying mobile phone, you are buying laptop, those things can also be, you can cover it. आप उसको भी ले सकते हो. Even अगर आपका GST है तो उसका GST बेनिफिट भी ले सकते हो. Of course, GST is not covered under today's discussion, तो वो भी आप ले सकते हो उसमें. So are you saying that if you buy a laptop, you can claim the input tax credit? You are talking about GST? हाँ, GST में input tax credit नहीं? Yeah, if I am covered under GST and I am also paying GST. Okay. In that case, yeah. अब Okay. GST में register होना चाहिए Not ना. one You way. should be a trader Not one- under registered. Yeah, yeah. But individuals are not registered under GST. Ah, So ah, how do Yeah, you yeah, claim? I'm covered. I was in Aditya Birla Group. My whole salary was considered as a consultancy last 2 years, and I was paying 50% tax. My salary per month was X. Then I was paying tax on X by 2. There is a section we will be discussing that. Section 44. That is the presumptive tax. It is 50%. Any consultant, he can get that benefit. So at times, instead of taking salary, it is better to take a consultation fee. उसमें आपका पैसा ज़्यादा income होगा, ज़्यादा saving होगा. And audit. It is the most important thing after this savings. The audit कहाँ जरूरत होता है? If your turnover is 2 crore or above,
Actually, it is 1 crore for any other business, but because it is a digital business, trading in derivative is a digital, 100% digital. So government allows you that if your business is within 2 crore, you don't have to do any trading. Other condition is there, I'll tell you. And if it is more than 2 crores, it must be audited. And जो presumptive taxation का बारे में बोल रहा था, the presumptive taxation scheme of section 44AD is designed to give relief to small taxpayers engaged in any business. So here also people get business. Let me give you an example. In a digital trading, जो हम लोग derivative trading करते हैं, अगर derivative trading में say my turnover is 1 crore and my profit or my income is 10 lakhs. Turnover is 1 crore, my profit is 10 lakhs, then it is allowed in the income tax, this section 44 AD, कि I can always show without any khata bahi. I don't have to keep any record, and I will show that in this 1 crore turnover, after my expenses, without any document, 6 lakhs. So they allow 6% your income without any paper documentation. जो लोग 2 करोड़ से कम होता है टर्नओवर, उनके लिए वो लैपटॉप में खर्चा करना है या कोई ड्राइवर का खर्चा करना है या स्वीपर का खर्चा करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप जस्ट उसको 6% कर दीजिए और अपना ITR भर लीजिए. So it is. मान लो 6% नहीं हुआ है तो 6% नहीं है तो. Now, if there is not 6%, if it is below 6%, you have to go for audit. You go for audit. That is a problem area. That is a problem area. There are people, those very hardly 2 or 3 trades they do in derivative in a month. साल में 10-15 या 25-30 किए होंगे और उनका लॉस हो गया, तो they have to go for audit, जो कि थोड़ा costly matters है. Because some auditors they charge high, there are some auditors probably थोड़ा सस्ता में कर सकते हैं, but you know a chartered accountant is a professional person, he will definitely take his जो भी उसका प्राइस है वो लेगा. तो वहां पर थोड़ा मुश्किल का चीज है. ध्यान में रखे, डेरिवेटिव ट्रेडिंग अगर ईयर आफ्टर ईयर लॉस हो रहा है तो आप वहां से निकल जाइए, नहीं तो ऑडिट फीट विल बी मोर इन एडिशन टू योर लॉसेस. तो आप थोड़ा ध्यान में देखिए, ये एक थोड़ा दिक्कत इसमें गवर्नमेंट आज तक कोई सहूलियत दिया नहीं है. मिस्टर महांती, एक ही चीज है, 2 करोड़ कैसे, व्हाट आर द आइटम्स इंक्लूडेड इन? I'll show you the practical thing, how the 2 crore is calculated. I'll show you in future. I'll show you that. मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर 2 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, तो 2 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है और मैं अगर 6% का प्रॉफिट दिखा दूं तो मुझे ऑडिट का जरूरत नहीं है, करेक्ट? नहीं 2 करोड़ से नीचे टर्नओवर होना चाहिए और प्रॉफिट मेरा 6% दिखाना. अच्छा, मान लीजिए आपका 1.5 करोड़, आपका 2 करोड़ हुआ मान लीजिए, हाँ ठीक है ना, और आपका प्रॉफिट 4% आ रहा है, हाँ, तो करना पड़ेगा. आप 6% दिखा दोगे तो कोई ऑडिट का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा वो 2% कितना बड़ा अमाउंट है, समझ रहे हो? वो 2% कितना, अगर वो 2% है 40,000 रुपया, तो इट इज बेटर टू अपॉइंट ए ऑडिट. वो ऑडिटर इस सब का, क्योंकि हम लोग का तो ज्यादा पेपर वर्क नहीं है ना, बस एक तो निकालो, ब्रोकर से निकाल लो, डाउनलोड ए रिपोर्ट एंड डू इट. इज वेरी सिंपल. सो ऑडिटर, मान लो मेरा प्रॉफिट 12% हो गया, मान लो मेरा प्रॉफिट 12% है. Speaking, I'll show you my own actual, because मैं तो हमेशा मेरा वीडियो में भी वही मैं ऊपर मैं दिखाऊंगा मेरा ज्यादा है. So what will be done? I'll show you there. नहीं तो अगर मेरा, मान लो मेरा प्रॉफिट 12% है, can I show the profit as 6%? Sure. Yes, sir. Sure. As long as it is below 2 crore. Your profit may be 50%. Still, As you long can as it is below 2 crore. नहीं, प्रॉफिट मेरा मान लो 50% हो गया तो can I show the profit as 6% only? हाँ, 6% डिक्लेयर करेंगे, कुछ नहीं पूछा जाएगा. अच्छा, 6% करके मैं टैक्स पे पूछा नहीं जाएगा, मेरे को कुछ देने का जरूरत नहीं है. Yes. नहीं, ऐसा नहीं होता. अगर आपका 12% प्रॉफिट है तो आपको 12% डिक्लेयर करना पड़ेगा ना. आपको ऑडिट में नहीं आओगे, लेकिन
टैक्स तो आपको Presumptive taxation means that government has worked out on certain parameters that average profitability is around 6 to 8%. So it assumes that everybody is earning in that range. Somebody who's making more money, he gets benefited out of it. Like you are doing only option trading, your turnover will never reach anywhere. नहीं And नहीं everything is your और profit. नहीं बहुत दूसरा ये कि अगर आप ये जैसे ये OW स्ट्रेटेजी कर रहे हो तो उसमें तो आपके प्रॉफिट बहुत ज्यादा आएंगे वही तो कह रहे हैं, more than उसमें 6% कोई only. दिक्कत- उसमें नहीं, कोई उतना दिक्कत ज्यादा नहीं है। आएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा उतना ज्यादा नहीं आएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा उतना ज्यादा नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा मैं कई लेकिन- सालों से कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। अच्छा लेकिन अगर 10% आ जाता है तो आई कैन एक्सट्रीमली लकी आपका 20-25% आ जाएगा, आप सोचते हो, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, जब टर्नओवर का कैलकुलेशन दिखाऊंगा तो पता चलेगा क्यों नहीं आता है। अच्छा अच्छा चलिए Then how you calculate turnover in future and option? ये इसका मैं प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा और यहाँ एग्जाम्पल भी मैं दिया हूं। जब आप फ्यूचर का बात करते हो, लेट अस देयर आर टू थिंग्स, वन इज फ्यूचर, अदर वन इज ऑप्शन, ठीक है ना? तो फ्यूचर का जब हम बात करेंगे, जो बाय है और जो उसका जो डिफरेंस है, वेदर इट इज पॉजिटिव, फेवरेबल और नेगेटिव, लॉस, अनफेवरेबल, वो जो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, एब्सोल्यूट फिगर, मेरा 6000 का उसका लॉस हुआ है, मतलब एक फ्यूचर में एब्सोल्यूट इज 6000, प्रॉफिट हुआ मतलब 6000। सो वो जो डिफरेंस इज ट्रीटेड एज ए टर्नओवर। ये नहीं कि 5 लाख में बाय किया, 5,05,000 में सेल किया, मेरा 10 लाख 5,000 का टर्नओवर नहीं है। मेरा टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर इज 5,000 रुपीज, 5,000। नाउ कमिंग टू ऑप्शन, यहां बड़ा पिक्यूलरिटी है। ऑप्शन में क्या है, सिमिलरली आपका जो डिफरेंस है वो तो आएगा, प्लस जो सेल प्राइस है, जो कि हम लोग ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी वाला, हमारा जो सेल वैल्यू होता है वो हमेशा बड़ा होता है, तो हमारा जो सेल वैल्यू है उसको भी हमको ऐड करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करने के बाद टर्नओवर निकलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप निफ्टी का फ्यूचर 12,800 में लिए, जो कि आजकल 50 हो गया है, 12,800 में, और सेल किया 12,700 में, तो आपका जो 50 into 100 जो नेगेटिव डिफरेंस था, दैट इज योर टर्नओवर इन केस ऑफ फ्यूचर। इन केस ऑफ ऑप्शन, इफ यू बाय 50 और 1 लॉट ऑफ निफ्टी का जो 12,900 का कॉल है 20 रुपीज में, एंड सेल इट, कितना दिखा है रुपीज? 30 रुपीज, 30 रुपीज। तो 10 रुपया का जो है 10 into 50, 500, दैट इज योर टर्नओवर, प्लस जो प्रीमियम जो आप जो मिला, एंड प्लस जो आप जो सेल किए हो, जो 30 रुपीज का जो है, 50 का जो है सेल प्राइस जो 30 है, तो उसका जो है मल्टीप्लाइड बाय 50, 1500, मतलब 1500 और 500, तो वहां एक लॉट में आपका टर्नओवर हो गया 2000। तो 2000 में आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 500 रुपया। तो ये 25% को रिड्यूस हो गया, जो आपको दिख रहा था बड़ा ना, अभी यहाँ रिड्यूस हो गया इधर। फिर हम इसमें लोग क्वेश्चन है मेरा, इसमें एक मेरा क्वेश्चन है, मान लो मैंने ऑप्शन बाई किया और उसको मैंने स्क्वायर नहीं किया, उसको मैंने लेफ्ट हो जाने दिया, तो क्या टर्नओवर माना जाएगा? आपका सेल प्राइस को लिया जाएगा। हाँ, उसमें आप बच गए। जो आप वेस्ट हो जाता बोलते हैं ना, हाँ एक्सपायरी डेट में जो जीरो हो जाता है ना, हाँ 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 हाँ, वो तो जीरो हो गया, तो फिर वहां तो जीरो ही आएगा सेल वैल्यू। अच्छा, No, it is shorting. No, sir, Mr. Ranjit, we are Yeah. first shorting. We short don't में have है। an No, he's option. giving We an are not example. buying and then selling. No, he's We are giving first an example. shorting and then buying for exiting. Yeah, but he's giving an example. कभी-कभी हम लोग उल्टा भी करते हैं कि protective. अगर No, आपने पहले बाई किया, PKG only taught us. This is my actual. You can see Zerodha and Obstacks. There are two brokers who give you. You don't have to do anything. उनका रेडीमेड सब रहता है. Everything is ready-made. As you can see, client name Ranjit Mohanty. This is my last year. The realized profit intraday speculation is 4,139.50. Are you able to see it? या Speculative profit is 4,130. Short-term profit is
6,72,000. Long-term profit is 2,63,000. This is my equity. Okay. तो my total turnover का जो breakdown है, intraday speculative turnover is 79,988,000. ये मेरा turnover है equity का. So उसमें मेरे को कितना profit आया? उसमें मेरे को profit आया 6,72,000, 2.63 lakhs and 4,139. It is the profit from equity segment. Now let us go to the next slide. This is the future option. ये already ready-made है. You can see option realized from profit is 18,77,000. Future realized profit is 2,72,000. And turnover, वो जो जितना कैलकुलेशन वो नीचे रह गया है, मैं आपको खाली एक स्लाइड ऊपर का पिक्चर दिखा रहा हूं. My option turnover is 2.68 crore. My future turnover is 29 lakhs. So it is more than 2 crore. So in my 3 crore का profit जो मेरा turnover है, उसमें मेरे को profit future and option में आया करीब करीब 21 lakhs. Equity का अलग है जो आपको पहले बताया. So this is my last year's profit and loss, and this is the actual one है. ये कोई मेरे बना बनाया नहीं है. ये this is है. इसमें क्या फायदा होता है? आपका जो टर्नओवर है ना, और जीरोधा बना कर रखा है. आप जिस दिन देखोगे ना, every day you can download it. On daily basis it is updated. So this is one big advantage of doing trading with Upstox and Zerodha. Now what happens? I also do trading with other brokers to be safe. और वो ब्रोकर है IIFL Securities. ये एक फुल, लेकिन they don't give you any such report. Here you have to do it manually. What they give you something like this. Realized profit and loss for client my Ranjit, that's my name, from 1/4/20 to 21. तो इसमें क्या ना, मेरा बाई प्राइस है, बाई क्वांटिटी है, बाई रेट है, देखिए बाई चार्जेस है, बाई वैल्यू है, देन उसके बाद सेल वैल्यू, सेल प्राइस एंड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है. Now here what I have to do, I have to do it manually now, and I have done it manually. I gave 3 example. Adani Port का, इसमें थोड़ा पूरा ठीक से क्लियर नहीं आता होगा, मैं बाद में नेक्स्ट स्लाइड में उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा, जूम करके. तो अदानी पोर्ट का जो पहला 2 है, उसमें जो है मेरा टर्नओवर में राइट साइड में रखा हूं. द डिफरेंस इज देयर, प्लस सेल प्राइस ऑल्सो मैं उसका लिया हूं. लेकिन जो डीएलएफ का है, डीएलएफ का ये मैं फ्यूचर में ट्रेड किया था, इसमें सिर्फ डिफरेंस ऑफ द वैल्यू आई हैव टेकन. दैट इज नो नीड फॉर एनी सेल वैल्यू, इसमें कुछ नहीं आता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन एंड फ्यूचर. अगर आप मैन्युअली करोगे तो ऐसा करना पड़ेगा. देन ये थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, आप उसको देख लीजिए. अभी वॉट एवर आई सेड इन द प्रीवियस स्लाइड, द सेम थिंग, हाउ इट इज कैलकुलेटेड. एंड लेट मी टेल यू, दिस presentation is available with Kothari ji, and I would request Mr. Kothari ji to share it to the members so they can आराम से घर में बैठकर उसको आराम से उसको देख सकते हैं अपना लैपटॉप में. सो ठीक है बॉस, इसको आगे चलें. वही आपने इसमें जो लिया है कि इसमें आपने नीचे वाले में ऑप्शन बाई किया था और सेल आपने नहीं किया, तो आपने नॉट एप्लीकेबल कर दिया. हाँ, बाय करने से तो सेल जीरो ही होगा ना. हाँ नहीं, बाई करने सेल नहीं किया आपने, तो इसलिए सेल वैल्यू जीरो हो गया आपका. नहीं, वो फ्यूचर है. फ्यूचर है. किसके बारे में पूछो? नहीं, यहाँ मेरा कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ फ्यूचर है. लास्ट वाला फ्यूचर है जिसमें एनए आ रहा है. लास्ट वाला फ्यूचर है. लास्ट वाला फ्यूचर है. इट इज नॉट ये, इट इज नॉट इन द फ्यूचर. डीएलएफ फ्यूचर है. तो इसमें खाली डिफरेंस आया है. अच्छा. इसमें सेल वैल्यू आएगा नहीं, फ्यूचर में सेल वैल्यू नहीं आएगा. ओनली ऑप्शन में सेल वैल्यू ऐड होगा. ठीक है बॉस. क्लियर. नाउ टैक्स ऑन डिविडेंड. अभी टैक्सेशन में आ जाते हैं. तो जेटली साहब जब तक जिंदा थे तब तक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जीरो था. फिर उन्होंने ये करने के बाद उनका डेथ हो गया. उन्होंने बोला कि कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स नहीं होगा. बट फिर भी हमारा देश का हालत ऐसा हुआ, सीतारमण जी को टैक्स करना पड़ा. फ्रॉम द लास्ट ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर से ये टैक्सेबल हो गया. पहले तो 10 लाख था, 10 लाख टैक्स फ्री था. अभी 10 रुपया में भी टैक्स, अभी कितना है,
उसमें अभी टैक्स लगने वाला है। जो भी आपका जो स्लैब है उस स्लैब के हिसाब में लगेगा। तो कभी आजकल खुश होने का कोई जरूरत नहीं कि मेरे को 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया डिविडेंड मिला। वो जमाना अलग था when the dividend up to 10 lakhs was free. Even we all put some money in, there is a mutual fund, HDFC Advantage Fund करके था, वो हर एक महीना मंथली डिविडेंड देता था। तो उसका फायदा हम लोग लिया 1, 2 साल 3 साल, बट अब वो सब बंद हो गया। तो वो सब हम लोग भी बंद कर दिए हैं। तो जितना भी डिविडेंड आएगा तो उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा। देयर विल बी नो टीडीएस और क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेरी? नहीं नहीं, अच्छा ये बैकग्राउंड नॉइज है। So there will be no TDS income, मैंने कहा सबको मूव किया है up to 5,000। उसके ऊपर होगा तो आपका TDS 10% कटेगा। कोविड के टाइम में 7.5 था, वो आजकल फिर 10% हो गया। अगर आप 15G 15H दोगे तो दे विल नॉट डिडक्ट इट। बट हम लोग जानते हैं कि हमको तो इनकम टैक्स देना है। अगर 10% काट रहे हैं तो काटने दीजिए, हमका उसका बेनिफिट तो मिल ही जाएगा। 26AS में विल बी सीइंग दैट इट हैज बीन क्रेडिटेड। तो उसका जो 10% वो काट लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका पैन नहीं है तो दे विल डिडक्ट 20%। तो इसीलिए पैन का इंपॉर्टेंस है। मैं नहीं लगता कि मुझे यहाँ कोई होगा जो अपना पैन और अपना इनकम टैक्स आधार के साथ लिंक नहीं किया होगा। सो पैन अगर है तो आपका 10% कटेगा टैक्स ऑन डिविडेंड। नो टैक्स ऑन इक्विटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% ओवर एंड अबव 1 लाख प्रॉफिट। अगर आप 1 लाख रुपया है तो 0 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। 1 लाख से ज्यादा है तो उसके ऊपर में आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज यू नो इट इज 15%। तो अभी क्या हो गया ना, मैं एक जमाना में मैं सोचता था कि पैसा 2 साल रखूं जो मुझे 0 टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए 10% एंड 15%। सो दैट इज नॉट इंसेंटिव। कभी कभी क्या होता है ना, कोई शेयर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, फिर मैं 2 साल इंतजार करता हूं तो अरे साला उस समय मैं बेचा नहीं, अभी इतना लेट हो गया तभी गिर गया शेयर प्राइस। अब क्या करता हूं, जब मेरे को लगता है कि काफी पैसा हो गया ना, मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेने की कोशिश करता हूं। क्योंकि 10% और 15% में क्या फर्क पड़ता है। रादर आई मे बी बेनिफिटिंग फ्रॉम द गेन। एंड नाउ टैक्स ऑन डेरिवेटिव, as I told, income tax from derivative as per own tax slab। जिसको जो भी टैक्स स्लैब है, जो नया वाला पुराना वाला जो भी उसमें जिसका 10%, 15, 20, 25, 30% और उससे ज्यादा 2 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उससे भी ज्यादा इनकम टैक्स, 5 करोड़ में और ज्यादा इनकम टैक्स। तो ये सब तो है। सो इट इज एज पर द ओन टैक्स स्लैब। Mr. Mohanty, I have just small question. If I can go to the previous slide. My name is Abhijit Mitra. This is a tax on equity. आपने मेरे से बात भी किया था। I know. मैंने एक ही आप मतलब वो टैक्स ऑन इक्विटी में जाइए, टैक्स ऑन इक्विटी स्लाइड में। हाँ, see, my question is very simple and all over there. So if a person who doesn't have any income apart from only equity shares and dividend income, so he, if I understand correctly, I might be wrong also, he can continue to fill ITR 2 only, irrespective of the number of shares which he has bought and sold. It can be 10 crore, 12 crore, correct? Correct me if I'm wrong. Absolutely correct. And that I'm also going to cover in these slides. That also, as I told you. But because my apprehension is that one of my friends who is a very keen investor, he also had done the same process. He has taken retirements just a couple of years back. So what has happened is that he was filling in ITR 2, but the income tax return has that officer had asked to assess because his turnover was something in the range of around 5 to 6 crores, and he was paying only tax. He calculated in such a way he always used to come under the 20% category, that is below 20 lakh. So he never used to pay anything more than that. So, but then he had to, I don't know what happened to that case, but he got a summons from income tax. So that's why I wanted to ask you this question. Yeah, I'll tell you the details of each ITR में क्या उसका प्रोज कॉन्स क्या है और क्या आपको एप्लीकेबल होगा, उसका डिटेल में बनाया हूँ, आप उसको देखिए। Thank you. Thank you. So what about tax on speculative income, which is intraday?
दैट इज ITR, इट डिपेंड्स, दैट डिपेंड्स, ITR 2 होगा या 3 होगा, मैं आपको 4 होगा, मैं बताऊंगा, आपको बताऊंगा. Okay, thank you. Right. Sir, one more query. Can the loss be offset against gain or capital loss? Yeah, capital loss. Yeah. Can we offset against the gain? I think that Mr. Nandi presents it fully, then you can ask. Otherwise, it will not go. Yeah, you can take advantage of that. You can take advantage. Only long term you have to take against long term. Short term को आप उसको adjust कर सकते हो, no problem. Okay, thank you. अरे उल्टा जा रहा हूं मैं. So ITR 1. So assessment year 2021 income from salary and pension. Please note it. These are the very clear thing. Income from one house property. मान लीजिए आप एक घर में रहते हो. You have got a second house जिसको आप भाड़ा में दिए हो, तो उसका जो भाड़ा आता है उसका भी आप इसमें दिखा सकते हो. Income from other sources excluding winning lottery और income from race horses. ये दोनों छोड़कर बाकी को कर सकते हो. And agriculture income up to 5,000. ये सहज is not applicable to probably any one of us. So it is only जो लोग का बहुत ही कम अदर सोर्सेज से इनकम है आप उसको दे सकते हो. इसमें भी आप इक्विटी का भी ले सकते हो, अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको भी ले सकते हो. ओनली व्हाट इज नॉट देयर, लॉटरी एंड रेस हॉर्सेस. दिस इज समथिंग एप्लीकेबल टू मेनी ऑफ द पीपल. हिंदू इनकम जिसका कि इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन देयर, इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज including winning from lottery and income from race horses. Total income from above should be more than 50 lakhs. जिनका 50 लाख से कम है वो ITR 1 कर सकते हैं, excluding lottery and race. Please remember है, अगर 50 आपका अगर लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन इज 20 लाख, उसका अगर टोटल इनकम उतना है तो आप ITR 1 कर सकते हो. लेकिन अगर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको ITR 2 करना है. And if you are the individual, छोड़िए इसको छोड़िए, if you are had investment in unlisted equity, being a resident, it's a non-resident के लिए income from capital gains. आपका अगर capital gains है, sorry मैं ITR 1 बोला था, capital gain अगर आपका है आप उसको आप ITR 2 में, अभिजीत मित्रा साहब उनका जो भी capital gain है ना तो वो इसी में आएंगे, ITR 2 में आएंगे, जो आपके दोस्त है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो. और अगर आपका एग्रीकल्चरल इनकम मोर देन 5,000 है ITR 2 में जाएंगे. सो दिस इज ITR 2. देन पीपल दोज हु आर डूइंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग, दे हैव टू चूज ITR 3 and 4. तो सबसे पहले मैं ITR 4 में जाऊंगा. द करेंट ITR 4 इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स HUF, जो कि इट इज ऑल इंक्लूडेड दोज हु हैव ऑप्टेड फॉर अ प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम अंडर 44AD, 44ADA, 44AE of the Income Tax Act. बट यहां देखिए आपका बिजनेस टर्नओवर अगर 2 करोड़ से कम है तब आप इसको कर सकते. 2 करोड़ आपका टोटल इनकम एक्सिड 50 लाख तो इसको नहीं कर सकते. टर्नओवर एंड इनकम दो डिफरेंट चीज है. इनकम मतलब प्रॉफिट, टर्नओवर मतलब जो आपको मैं बताया मेरा लास्ट ईयर का 3 करोड़ समथिंग जो मेरा टर्नओवर है. सो मेरे लिए ITR 4 नहीं है, मेरे लिए ITR 3 है. एंड हु कैनॉट यूज, अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है, आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, और इनकम फ्रॉम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपका 4-5 घर आप भाड़े में लगाए हो तो वो भी आपको लागू नहीं होगा. आपका अगर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एंड लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड है तो तब देन यू कैनॉट यूज ITR 4. And if you are accessible in respect of income of another person, जैसा कि मान लीजिए आप कुछ गिफ्ट दिए हो अपने वाइफ को, उसका जो इनकम आएगा प्रॉफिट वो दैट विल बी एडेड टू यू. लेकिन आपका बेटा को दिए हो, बेटी को दिया हो, पिताजी को दिया हो, माताजी को दिए हो, उसमें कोई आपका उनका इनकम आप में एड क्लब नहीं होगा. लेकिन आपका बिलो 18 ईयर्स जो है और जो वाइफ को जो चीज दिए हो उसमें जो अगर कोई इनकम होता है दैट विल बी एडेड टू योर इनकम. So in such case you have to go for ITR 3. ITR 3 का जो है फॉर्म, it is to be utilized those who are carrying a business or profession
If you are if you have got investment of unlisted company, return may include income from housing property, salary भी है, pension है, return from any other person, and income of a person as a partner in the firm. जो LLP होता ना, तो उसमें भी अगर आपको कुछ इनकम होता है तो ITR 3, जैसा कि ITR 1 is easier one than ITR 2, similarly ITR 4 is for small income than ITR 3. So ये क्लैरिफिकेशन मैं करता हूं कि अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है 2 करोड़ से, या आपका इनकम इज मोर देन 50 लाख, और ये सब चीज के लिए आपको ITR 3 में आपको फॉर्म रिटर्न भरना पड़ेगा. ये समरी है, यू कैन गो थ्रू इट, थोड़ा टाइम आप देख लीजिए. ITR 1 किसको एप्लीकेबल है, सैलरी वालों के लिए तो सबके है, हाउस रेंट में कहाँ रेस्ट्रिक्शन है कहाँ नहीं है, बिजनेस इनकम जीरो, ITR 1 तो बिजनेस इनकम हो ही नहीं सकता, तो ये चीज है. प्रिजम्पटिव टैक्स होता तो ITR 4 होता है. कैपिटल गेन अगर है तो यू कैनॉट डू ITR 1 और ITR 4. अदर सोर्सेस का जो इनकम है वो तो इसमें ऐड हो जाएगा. एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम, या तो ये 5,000 तक तो फ्री है. लॉटरी इनकम, देन लास्ट वन मेरे को दिखता नहीं, फोटो आ गया, कोठारी साहब बता सकते अगर कुछ है तो. एनीवे आप लोग देख सकते हो. सो दिस इज द ITR फॉर्म समरी. डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स फॉर इंडिविजुअल जनरली 31 जुलाई, लेकिन आप लोग को सबको पता होगा कि इस साल इसको 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, जो इंडिविजुअल रिटर्न फाइलिंग कर रहा है ड्यू टू कोविड सिचुएशन. और जो जिसका अकाउंट ऑडिट होता है उसका जनरली इट इज 30 सितंबर. मेरे जैसा आदमी का जो ऑडिट होता है 30 सितंबर. इसके ऊपर में अभी तक गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, लेकिन जब इंडिविजुअल का 30 सितंबर हो गया है तो मेरे को लगता है कि जो लोग का ऑडिट होना है उनका भी डेट चेंज होगा. गवर्नमेंट आज डिक्लेयर नहीं करेगा, नॉर्मली 3-4-5 दिन पहले ही वो लोग करते हैं, नहीं तो कोई आराम करने लग जाएंगे. सो दैट इज द रीजन ITR का जो डेट है मैं इसको आपको बताया. नाउ वी कैन गो फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, एंड इसको क्लोज कर देते हैं. यस सर. You are saying that आपका स्क्रीन शेयरिंग हटा दीजिए so that we can see the faces. अच्छा, योर स्क्रीन शेयरिंग से मैं इसको बंद किया. स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए तो देन गैलरी में हो जाएगा. स्टॉप हो गया. या क्वेश्चन, माय नेम इज दीपक कुमार होटा. ये जो जीरोधा में ये जो आप बोल रहे हैं ना, आपने दिखाया वो इट इज ऑटोमेटिकली, हाउ डू यू डाउनलोड इट? अच्छा, आपको जाना पड़ेगा, कंसोल में जाइए. कंसोल में आपका पास है ना, जो मैनुअली आप इसमें करते हो तो मोबाइल से भी कर सकते हो, अपना लैपटॉप में. कंसोल में जाने के बाद ना ऊपर में देखना है, उसमें मेनू है, रिपोर्ट है. तो रिपोर्ट में क्या है ना, 2 टाइप का है. एक है प्रॉफिट एंड लॉस है, और एक है टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस. ये टैक्स हार्वेस्टिंग कुछ है उसमें? पार्डन? ये टैक्स हार्वेस्टिंग कुछ है उसमें? वो अलग चीज है, वो सब अलग चीज है, उसको छोड़ दीजिए. जो रिपोर्ट है ना, तो वही 2 आपका इंपॉर्टेंट है. प्रॉफिट एंड लॉस तो आप डेली देखोगे, क्योंकि मेरे को इस महीना कितना प्रॉफिट, 1 साल कितना हुआ, वो तो डेट आप जैसा अप्लाई करोगे आपको प्रॉफिट दिखाने लगेगा. ठीक है. उसका नीचे वाला जो है ना, वो है टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स P&L. आप उसको करोगे, वो क्वार्टरली बेसिस पे आपको दिखा देगा. तो यू गो देयर एंड सी, बढ़िया से डाउनलोड हो जाएगा. यू डोंट हैव टू डू एनी मैनुअल थिंग. यस प्लीज. एक्चुअली मैं भी अपना रिटर्न है वैसे ही फाइल करता हूँ होता जी. मतलब मैं ये जीरोधा का डाउनलोड करके और वो रिपोर्ट को एज इट इज मेरे चार्टर्ड अकाउंट को देता हूँ, और वो उसके बेसिस पे जो है ये ITR 3 फाइल कर देता है. कोठारी जी, आप हमारे लिए भी रिटर्न फाइल कर लो यार, एक सेटअप. अरे बता दो दिया तो आसान तरीका है, डाउनलोड करके चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे देने का. इट इज वेरी सिंपल. दैट इज अ ग्रेट लर्निंग इन दिस सेशन. देखिए, बहुत सारा इनकम होता है एक आदमी का, सैलरी का रहता है, उसका देखना पड़ता है, कंसल्टेंसी का पैसा अलग होता है, और बहुत सारे चीजें होता है. खाली अगर जीरोधा है तो इजी है, उससे अलग अगर है तो आप. और अभी तो जीरोधा में एक फैसिलिटी और है कि आप वहीं पे भी IT रिटर्न फाइल कर सकते हो. दे चार्ज समथिंग अराउंड 1000 रुपीज और समथिंग लाइक दैट. उन्होंने टाई अप किया हुआ है, तो उससे आप डायरेक्ट ऑनलाइन आप वो भी कर सकते हो अगर इफ यू वांट. एग्जैक्ट. और उसमें ऑडिट भी इजीली सस्ता में कर देंगे वो लोग. हाँ.
वो लोग ऑडिट भी सस्ता में कर देंगे। तो जीरोधा वाला वो भी करता है ना, वी डोंट डू इन वन ट्रेडर ना। प्रॉब्लम क्या होता है सर, मैं एक बार फंसा था, मैं थोड़ा 2 मिनट का चीज बता देता हूं सबके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप कभी आप जब ट्रेडिंग करते थे, कभी कभी आप लॉस किए होगे बिकॉज आपका ट्रेडर टर्मिनल बंद हो गया। ऐसा सिचुएशन आया है, बड़ा लॉस हुआ? मेरे साथ हुआ था लॉस, मेरे साथ लॉस हुआ था। मैं ऑप्शंस का दिखाया नहीं, मैं दिखाया जीरोधा का। मेरे साथ ऐसा हुआ, जिस दिन बजट आया, मेरा काफी सारा प्रोटेक्टिव पुट था, मेरे को पता था मार्केट पहले गिरेगा, तो मैं जीरोधा से तो निकल आया। बट इन स्पाइट ऑफ मेल एंड अदर थिंग्स, ऑब्स्टक्स वाले कोई फोन नहीं उठाया। फिर उनके चलते मेरा करीब 1 लाख रुपया मेरा लॉस हुआ। देन कंटिन्यूड एंड प्रोबेबली आई वाज वन ऑफ द लकी फ्यू। मैं इसके बारे में 2 वीडियो अपलोड किया हूं मेरे चैनल में। तो मैं उनके बारे में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भुवनेश्वर में उनका जो ऑफिस है, वहां मैं कंप्लेन किया। देयर वाज इंक्वायरी, देयर वाज होने के बाद आई गॉट बैक 50%। मैं बोला चलो जो आराम से मिल रहा है ले लो। मैं भी उसको मैं मांगा था 49,000, मेरे लिए ऑर्डर पास हुआ 46,000 एंड ब्रोकर विद इन 8 days रिटर्न माय 46,000 टू माय बैंक अकाउंट। सो आप अपना राइट आपको पता होना चाहिए। अगर उनके चलते आपका घाटा हो रहा है, अभी देखिए बीएसई का बारे में सेबी बहुत बड़ा डिसीजन लिया, उनका सिस्टम खराब होगा तो क्या पेनल्टी लगेगा। तो इफ यू आर लूजिंग मनी बिकॉज ऑफ योर ब्रोकर, डोंट लीव देम, गो फॉर इट एंड टेक द मनी फ्रॉम देम। तो अभी जो ये एनएससी टर्मिनल में जो प्रॉब्लम हुआ था और 3 घंटे तक ट्रेडर टर्मिनल नहीं चला था और उन्होंने सारा पोजीशन स्क्वायर कर दिया था, उसमें तो बहुत लोगों का लॉस हुआ था। हाँ, मेरे को एक आदमी फोन किया जब ये मेरा वीडियो आ गया था तब तक, तो मेरे को बोला एंड यू विल बी सरप्राइज, यू विल बी हैप्पी टू नो, वो बेंगलोर का एक लड़का है, 25 साल का लड़का, इंजीनियर है, उसका ट्रेडिंग करता है। ही गॉट बैक 50% मनी फ्रॉम द ब्रोकर। अच्छा, बट पहले तो चिट्ठी लिखेंगे, वो हमारा सिस्टम है, यू हैव ऑलरेडी साइंड द टेक्निकल ग्लिचेस के लिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो सब तो साइन किया है। अरे वो तो आप मजबूरी में साइन करवाए हो भाई हमसे। और आप 30 लाख रखोगे अपना कस्टमर और सिस्टम रखोगे 1 लाख का, तो चलेगा क्या? तो एनीबडी हैज डिफाइंड वेदर योर सिस्टम इज रेडी। हाँ, अश्विनी कुमार जी का कोई क्वेश्चन है? अश्विनी कुमार जी हाथ दिखा रहे हैं। Mohanty ji, one learning, in this presentation, that if you have account only with Zerodha, and it is becoming very simple because there are tax and profit loss statements which can be directly downloaded, and that is defined as per the applicable Income Tax Act. So that is one great relief for us, because otherwise you were mentioning about IIFL where a lot of manual work had to be done, and so that is my friend Ramkrishnan ji, you know why? Suppose the system is problem is that Zerodha में problem हो गया, तो जो trade मेरा open है ना, हाँ ठीक है, IIFL is a local guy, I will call him and tell him that आप मेरा ये trade का reverse trade ले लो, then at least I will not lose 1 lakh rupees. I will get my money. That is the reason why person like us should have 2 accounts. Okay. That is my personal recommendation. I don't do any trading normally in IIFL. Hardly I do any trading in IIFL. बोलिए मैडम। Yes, madam Yasmin ji. हाँ बोलिए यास्मीन जी, बोलिए। I was told that margin of only 25 lakhs is safe. ऐसा कुछ है? Means if we put a margin of more than 30-40 lakhs जो हमारा broker के पास होगा, so only 25 lakhs is insured. The balance, if anything goes wrong with the broker, वो चला जाएगा अपना पैसा। मैम, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं? भगवान ना करे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर दिवालिया हो गया ना, आपको सिर्फ 5 लाख मिलेगा, भले आपका 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है। नहीं, I agree, but is that a fact? Is that a fact? Means we should keep our margin low. ऐसा कुछ है? नो, ऐसा है, लेकिन नॉर्मली ये बहुत रेयर चांस है। जो आप जो बता रहे ना, वो थोड़ा मुश्किल है, उसमें ऐसा होता नहीं है। ऐसा मेरे को लगता नहीं। I was told that Karvi में हुआ। कार्बी में हुआ, अभी उसका नोटिस 3 दिन पहले उसका नोटिस आया था, कार्बी एंड 2 अदर ब्रोकर,
अवधूत या समथिंग लाइक दैट। अनुग्रह तो उसका जो हम लोग का जो आप देखिएगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है ना, उसमें नीचे लिखा है जो स्टॉक एक्सचेंज जो पैसा लेता है ना, उसका कुछ पैसा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में रखता है। सो फ्रॉम दैट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड यू विल गेट मनी, बट उसका लिमिट है, आई थिंक 25 लाख का लिमिट। आई हैव नॉट रिसर्च्ड दैट। So I'll not if we go beyond that 30, 35, 40 lakhs, मेरा about 60, 70 lakhs का margin है. So is that, I'm just wondering, sometimes you wonder whether it's safe, you know, when you hear about all these things. उसके लिए ना SEBI has come out with the fantastic, ये जो margin का ऊपर में जो SEBI का, it is very difficult. पहले हम लोग margin अभी 75% हो गया, तो आपका पैसा ना वो ब्रोकर यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये सब जो चीज SEBI कर रहा है, कभी कभी हमको तकलीफ होता है। आई थिंक बाय नेक्स्ट सितंबर 100% मार्जिन हमको देना पड़ेगा, लेकिन फायदा यही होगा कि हमारा पैसा को ब्रोकर दूसरों के लिए खर्चा नहीं करेगा, अपने लिए खर्चा नहीं करेगा। सो दैट इज द सेफगार्ड व्हिच SEBI हैज टेकन नाउ। सो नाउ माय ब्रोकर Zerodha cannot utilize my money. So if I keep 70 lakhs also in the margin with pledging you see, Motilal Oswal gives us cash as well as shares pledge. So I can pledge up to even 70 lakhs. That's not a problem. Sometimes you sell your shares, you're getting 25, 30 lakhs from it. So if you put it in the margin, I just want to know whether the margin is safe. That is my query. और R&D करना पड़ेगा मैडम, और R&D करना पड़ेगा। स्टेट बैंक में आपका R&D यानी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि ये क्या 25 का लिमिट है या 50 लाख का लिमिट है या क्या है। मेरे को भी पहली बार सुना। मैं इसका रिसर्च जरूर करूंगा। मैम ऐसा ये लिमिट 5 लाख की है। 6 लाख SEBI gives you up to 25 lakhs. मैम आप यदि 70 लाख भी रखेंगे तो 5 लाख रुपए आपको मिलेगा, पहली चीज। दूसरी बात, कोई भी चीज रातों रात नहीं खत्म होती है। जैसे आप बोल रहे हो मोतीलाल ओसवाल के पास आपने 70 लाख रखा हुआ है, मोतीलाल ओसवाल रातों रात खत्म नहीं होगा। खत्म होगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में। उस समय आपको बाय प्रिकॉशन अपनी मार्जिन मनी वहां से निकाल लेनी है, बस ये। जैसे कार्बी भी went off in one day. नहीं मैम, they did give you 1 month and 2 months, okay? So that is why I'm asking. मैम न्यूज़ 1 महीने से थी, न्यूज़ 1 महीने से थी, डिक्लेयर बैंक DHFL सबको पता था। हम लोग क्या ना ग्रिड के चलते करते हैं, हम लोग ग्रिड के चलते करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमको पता चला, फटाफट पैसा निकाल लीजिए। ये टर्नओवर का मुझे वो presumption नहीं समझ पड़ा। Can you explain that? Turnover, one thing you do, you go through that your my presentation. Any question, you directly send me a message. I'll speak to you, or I'll answer it, or I'll explain. Okay. Because I'm not on Zerodha platform. I'm on. No, I'll tell you how to do it. You just go through the PowerPoint and write to me. मोहंती जी मैं एक चीज बताना चाहता था कि जो मिसेस गोटला जो आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी, ये एक वन ऑफ द सीनियर मेंबर है और ये महीने का 10 लाख रुपए कमाती है कम से कम फ्रॉम ऑप्शंस ओनली, एंड शी हैज अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 10 crore. No. 10 lakhs is for all the accounts which I have. You are earning 10 lakh rupees per month, and she is one of the senior most in our group. 10 lakhs. I'm doing 10 lakhs of 5 business with a family का। नहीं आता, अकेला नहीं आता। You are too modest, I will say. अच्छा, निखिल राज जी का मैंने सबको म्यूट किया है, फिर से अनम्यूट करके बोलिए। सर गुड आफ्टरनून, सर निखिल राय बात कर रहा हूँ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने लास्ट ईयर एक शेयर लिया था और उसको मुझे टोटल 4.5 लाख का लॉस मैंने बुक किया बिफोर मार्च 31, बट मेरा FNO में 3.5 लाख का गेन है। मतलब मेरा नेट लॉस देखे जाए तो 1 लाख का है। तो क्या मैं उसको इक्विटी में जो लॉस हुआ है उसको FNO के अगेंस्ट में दिखा सकता हूँ कि मैं जो आपने बताया कि 8 साल में आप दिखा सकते हैं, बिकॉज मेरा FNO में गेन में इट विल कम एज बिजनेस इनकम, बट इक्विटी लॉस को मैं फिर कैसे शो करूँ उसके अगेंस्ट सो दैट माय नेट टैक्स लायबिलिटी इज रिड्यूस। देखिए, आप उसको अगर एक बार
स्केलेबिलिटी को आप बिजनेस इनकम दिखा दोगे ना, अगले हर एक साल आपको बिजनेस इनकम ही दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि एक साल में बिजनेस इनकम, एक साल में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये अलाउ नहीं करेगा आईटी वाले। सो यू थिंक ओवर इट, अदरवाइज यू कैरी फॉरवर्ड बोथ। उसका आपको फायदा मिल जाएगा, डोंट वरी। एफएनओ का जो लॉस होता है ना, वो भैया इक्विटी का लॉस आप अगले साल जब प्रॉफिट करोगे उसमें एडजस्ट करना बेटर रहेगा। डोंट मर्ज इट। अभी से कर लोगे मर्ज तो फिर जैसा अलाउड नहीं है, मतलब यू कांट। हर एक साल आपका ऐसा नहीं कि इस बार मैं इस बार मैं प्रिजम्पटिव टैक्स लूंगा, इस बार मैं कैलकुलेट करके ऑडिट करके करूंगा, ऐसा नहीं होगा। जो करोगे 5 साल तक वो फिक्स्ड होना पड़ेगा। 5 साल ऑडिट करोगे तो 5 साल तक करना पड़ेगा। प्रिजम्पटिव टैक्स लोगे तो 5 साल। ऐसा नहीं कि आपको इस साल थोड़ा मुश्किल हो गया तो मैं उसको चेंज कर दूंगा। ये लोग, वो लोग हमसे, हमारे बाप लोग हैं जो लोग बैठे हैं दिल्ली में। ठीक है सर, समझ गया मैं सर, थैंक यू। तो आप सोच लो, आप सोच लो, इट इज बेटर टू कैरी फॉरवर्ड, बेटर टू कैरी फॉरवर्ड। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। Can I ask a question? हाँ बोलिए। Yeah, where do you get this dividend statement in Zerodha, number one? Number two is, if let us say on a turnover of 2 crores, if the actual profit is around 30 lakhs, and profit and pay tax on it. Yeah, you pay tax only on 12 lakhs. आपका 2 करोड़ में 30 लाख प्रॉफिट है, ठीक है ना। मेरा आप देखा होगा ना, मेरा टर्नओवर इज 3 करोड़ रुपीज समथिंग। मेरा प्रॉफिट जो है ना वो कितना है, 21 लाख एफएनओ में है, तो 6% कितना आता है, 18 लाख आता है। तो मैं तो अपना चार्टर्ड अकाउंट में बोलूंगा भाई 18 लाख के हिसाब में ज्यादा से तुम कम करो, 15 लाख 16 लाख कर दो मेरा प्रॉफिट को, लेकिन 18 लाख से ऊपर में मैं पैसा देने वाला नहीं हूं। अगर गवर्नमेंट 2 करोड़ में 6% देता हो तो 3 करोड़ में 18% ही आता है ना, भले ही मेरा 21 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो वो चीज है। और डिविडेंड का जीरोधा में नहीं मिलेगा आपको। मैं क्या करता हूं, जो मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें एसीएच करके एक तो टर्म होगा, उसमें जो उसका ना, उसको मैं अलग करके मैं मैनुअली कैलकुलेट करके उसको निकाल लेता हूं, व्हाट इज माय डिविडेंड, हाउ मच आई गॉट डिविडेंड। एंड सेकेंडली यू कैन सी इट फ्रॉम 26AS। आप जुलाई महीना का आप निकाल लोगे अपना 26AS का, डाउनलोड कर लोगे, उसमें जो कंपनी आपको डिविडेंड दिया है उसमें 10% टैक्स वो लोग काटा होगा, तब वहां से भी आपको पता चल जाएगा कहाँ वो कितना मिला था, कितना 10%। जीरोधा में आता है, जीरोधा की जो जीरोधा में आप डाउनलोड करोगे ना, नहीं, जो जीरोधा के पास शेयर है और जो डिविडेंड जीरोधा के अकाउंट में आ गया है उसका वो स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट दिखा देगा। बट अगर डिविडेंड आपके अकाउंट में आया है तो फिर जीरोधा नहीं दिखाएगा ना। वो प्लेज जो है ना, हाँ प्लेज जो है वो दे देगा। हाँ, जो प्लेज शेयर है उसके अकाउंट में अगर वो आया है तो नहीं, प्लेज का तो अपने को आएगा। जो शेयर कितनी बार वो इंट्राडे में ट्रांसफर नहीं होता है, 2-3 दिन में वो आपका हो गया प्रॉब्लम, तो वो शेयर अगर जीरोधा के पास रह गया तो वो डिविडेंड को दिखा देगा। बट अगर आपका एक तो इंटरेस्टिंग स्टोरी आप कोठारी जी को बताया था, मैं बाकी सबको बता रहा हूं। मेरे एक मित्र हैं जो कि टेलीग्राम चैनल में मेरा है, और उन्होंने क्या किया ना, 2 करोड़ का प्लेजिंग लेकर रखे हैं, और गलती से एक दिन टाटा स्टील बढ़ रहा था, उन्होंने 32 लॉट कॉल सेल कर दिया। कैन यू बिलीव, 32 लॉट को। मैं बोला यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, कुछ एडजस्ट मत करो। नॉर्मली मैं कभी किसी को बोलता नहीं, मैंने डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट व्यूज। मैं सोचता हूं कि ज्यादा एडजस्टमेंट में जो बोला ना, रात का नींद खराब और बाकी सब खराब होता है ना, वही होता है। आप अगर लिए हो ऑप्शनल स्ट्रेटेजी, उसको स्टिक करो। अगर गलती से लॉस हुआ, इमीडिएटली निकलो। उनको 1.5 लाख रुपया का लॉस हुआ और उन्होंने निकल आए ट्रेड से। और मैं बोला सर जरूरत नहीं है, आप 2 करोड़ का क्यों प्लेज लेकर बैठे हो? वो प्लेजिंग जो उसको बंद कर दो, अनप्लेज कर दो। यू नीड हार्डली 10 लाख 15 लाख रुपीज फॉर ट्रेडिंग। 2 करोड़ का लेकर बैठने का क्या होता है? यही गलती होता है एक आदमी से, गलती से 32 हो गया। तो ज्यादा, हाँ, ज्यादा प्लेज करके ज्यादा रखिए, जितना जरूरत है उतना प्लेज कीजिए। Suppose you have disposed a flat, okay, and suppose I'm using in trading, and I incur loss, so I can adjust that. What a fantastic question, Shekhar Rajan ji. It just happened with me. Achha. I will answer that. Yeah. What happened? I have got a house in Indore, okay. even if I am staying at Bhubaneswar.
I sold it. I bought it at 42 lakhs. I sold it at 40 lakhs because इंदौर में थोड़ा मार्केट जमा नहीं है. तो वैसे तो दिखता है 2 लाख, लेकिन मैं उसका कैपिटल जब उसका इंडेक्सेशन होता है ना, यू नो अबाउट इंडेक्सेशन, तो उसका 65 लाख करीब आया. तो 65 लाख माइनस 40 मेरा लॉस हुआ 27 लाख का. तो आई वाज वेरी हैप्पी. चलो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो पूरा गायब हो जाएगा. आई आस्क्ड माय चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे सेड दैट बिजनेस इनकम और जो लैंड है, जो कैपिटल और जो एसेट है वो अलग है, उसका लॉस इसमें आप नहीं कर सकते हो. दैट कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट. आपका अगर बिजनेस उसमें होगा उसमें कर सकते हो, आप उसको शेयर का अगेंस्ट में नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डू दैट. अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा हुआ है. अभी हुआ है, 1 महीना. अच्छा साहब, we are all new F&O traders. Now we have to file in the new tax regime only, no? It is your choice. Your chartered accountant will tell you which one is beneficial to you. If you don't take the advantage of ATC and all those things, probably new tax regime. Otherwise, it is your choice. I go by old. I am still using old one. Who can change every year? Only the salaried person can change. This year old, that year, next year new, next year old. Only salaried person. All other, they have to decide once. Acha, Mohanty ji, I must definitely, place on record, our appreciation for one of the excellent presentations, during this webinar. And your, the way you presented, it was full of passion, to educate everybody. That was the, simplest mantra of your presentation. And I'm very sure that everybody got benefited, through this presentation. In fact, I'm not getting much doubts also, though I'm not a big F&O trader or a tax expert, but your presentation was so concise and, so elaborative. And it is one of the shortest webinars we had during the last few Sundays, less than 2 hours. And, I mean, so nice it was. I'm not getting any much doubts also because it was so clear. And I will again go through once in the YouTube, the PPT, when I have to file the income tax, returns through my chartered accountant. And, it will be very clear. I must, once again, full compliments to you for your passion and commitment in delivering a high-class presentation today. Thank you. My pleasure. It is all your good wishes, and I'm so much delighted with your kind words. Thank you very much. इसीलिए मैं बताया था कोठारी जी को मेरे को इतना टाइम नहीं लगेगा. That is the reason I took that 45 minutes from you. So you can go back to your CSP का बारे में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो. Otherwise, अरे आप तो एक्सपर्ट बैठे हैं, आपसे लोग पूछेंगे. अभी मैं तो बहुत जवाब देता हूँ भाई. कुछ भी CSP पे, OWS पे का बारे में any question. Mohanty sir, I will recommend please go through my videos if you have not seen. Mohanty sir, you were telling protective put का बारे में बताता हूँ. Protective insurance, protective. मैं आपको बताता हूँ, right? मैं उसके बारे में थोड़ा 5 मिनट लूंगा, थोड़ा अच्छा से सिंपल वे में बताऊंगा. हाँ, पूरा टाइम लीजिए. We are 6 o'clock of time. सर ऐसा है, सपोजिंग हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं ना, सबका तो एक कैपिटल है ना. कुछ भी आप करो, आप कोई 10 लाख, किसका 50 लाख, किसका 25 लाख, किसका 1 करोड़, और जो यास्मीन मैडम जैसा उनका 2 करोड़ भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं. तो ये सब जो होता है, so what you have to do, you want to protect our capital as much as possible. 100% we cannot protect, but क्योंकि आप देखिएगा why 100% होगा नहीं. मान लीजिए कुछ भी पुट आप बाय करो, जब मार्केट गिरता है ना, वो जो निफ्टी अलग चलता है, इंडिविजुअल शेयर अलग चलते हैं, you know that. But still, to some extent, you can protect. In some cases, you will protect more than the loss you making, and some cases, individual शेयर में आपका लॉस ज्यादा हो सकता है than the nifty loss. जैसा कि बताया कोठारी जी ने, जो ने कोई और आई थिंक रामकृष्ण जी, कुछ शेयर तो गिरते हैं 40-50%, कुछ शेयर 90% तक नीचे गिर जाते हैं. So in view of that, so you take a general. हमारे पास we cannot take a protective put for December for individual equity. लेकिन हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है,
दैट गिव अपॉर्चुनिटी टू बाय और सेल दिसंबर का जो सीरीज है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर 21, 22, 23 आप चेक करोगे तो आपको इस सब का मिल जाएगा। लेकिन लिक्विडिटी के हिसाब में हमारा 21 का जो है दैट इज वेरी लिक्विड, वेरी लिक्विड। आपको ज्यादा गैप नहीं, 4-5 रुपया का गैप में 16,000 में 4-5 का 500-600 का कॉल पुट होता है तो उसमें ज्यादा नुकसान नहीं है। एंड सबसे बढ़िया टाइम ये है, व्हाई? बिकॉज द भिक्स इज नाउ अराउंड 12-13%। भिक्स अगर 24 रहेगा ना, जो चीज आप 16,000 का कॉल, सॉरी 16,000 का पुट आज जो मैं 550 या 600 में मैं बाय कर रहा हूं, उसी का दाम 800 रुपया होगा अगर भिक्स 24-25 है। कुछ दिन पहले ऐसा था, बट ग्रेजुअली द मोमेंट भिक्स कम्स बिलो 15, इट इज रिकमेंडेड दैट ड्यूरिंग दैट टाइम यू शुड बाय पुट फॉर December 21। इट इज 21 मतलब आपको कब बाय करना है? December 20 से आप नजर रखना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? तो आपको उस समय थोड़ा प्राइस ज्यादा मिलेगा। अभी 600 है तो उस समय जरूर 800-900 होगा। तो उस हिसाब में आप क्या करना, जो एट द मनी जहां चल रहा है मार्केट अभी चल रहा है 15,800, आप 200 का एडवांटेज लो। यू ट्राई, यू कैन ऑल्सो बाय 15,500 पुट बाय कर सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड, बिकॉज देयर इज नॉट मच अमाउंट डिफरेंस, यू गो फॉर 16,000 पुट। कल का जो क्लोज है 620 है, लेकिन मंडे को मार्केट ऊपर जरूर जाना चाहिए मेरे हिसाब में, भले ही 2 घंटा का जाए। अगर 150 पॉइंट निफ्टी 100 पॉइंट निफ्टी चला गया तो वही चीज आपको 560, 70, 550 में मिल जाएंगे इंस्टेड ऑफ 600 जो आज चल रहा है। तो आप क्या करना, उसी समय मान लीजिए आपके पास कितना है, मान लीजिए आपके पास 40 लाख आपका कैपिटल है, तो 40 लाख के लिए क्या करना है, 16,000 का अगर मैं एक पुट बाय करता हूं, वो कितना रुपया का मेरे को प्रोटेक्शन देगा? 16,000 रुपया मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट ऑफ 1 निफ्टी दैट इज 50 टुडे, तो 8 लाख का मेरे को इंश्योरेंस मिल गया। बट इन दैट केस मेरा अगर 40 लाख है, क्या मैं एट ए टाइम आई शुड बाय 5 लॉट मेरे को खरीदना एट ए टाइम जरूरी है क्या? नहीं, मेरे हिसाब में ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 खरीद सकते हो, 2 पुट, जो कि 16 लाख का आपका इंश्योरेंस हो गया। अब क्या करोगे? आजकल तो मार्केट में लोग ये बोलते कि 16,000 तो जरूर जाएगा ही जाएगा, 16,200 जाएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, अगर 16,000 सचमुच गया, जो चीज आज 550 में मैं बाय कर रहा हूं, मेरे को शायद 520 में या 480 में, 490 में बाय करने का मौका मिल जाएगा 16,000 का। तो वैसा करके क्या करना है, मेरे को 5 लॉट अगर मैं बाय कर लेता हूं तो मेरे पास कितने पैसे आ गया? मेरे को 5 लॉट दैट इज 250 मल्टीप्लाइड बाय 50, सॉरी 16,000, 250 मल्टीप्लाइड बाय 16,000 जो उसका मैं कॉल पुट बाय किया हूं, 40 लाख आ गया। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, ये 40 लाख का जो मैं दिया 2.5 लाख रुपया प्रीमियम, वो दिसंबर तक 0 हो जाएगा, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन क्या मैं ये जो पुट बाय किया हूं, मैं सचमुच दिसंबर तक रखता हूं क्या? नहीं रखता हूं। मैं बार बार खरीदता हूं, बार बार सेल करता हूं। क्या होता है देखिए, मार्केट इज फ्लक्चुएटिंग। मार्केट 15,900 के आसपास जाता है, फिर 15,700 तक आ जाता है, 650 तक आ जाता है। तो मेरे को अगर लगता है कि ये 600-700 का बाद देयर इज समथिंग, सम डेवलपमेंट, डाउ जोन्स बाकी क्या बिहेव कर रहे हैं, उस हिसाब से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो जब मेरा 20,000 का प्रॉफिट है, मैं थोड़ा वेट करता हूं, जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, पता चलता है। अगर आप यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए चार्ट, सामने बैठे, तो पता चलता है मार्केट क्या कहां जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं, हो सकता है कि जस्ट जितना में मैं बाय किया था उसी के आसपास का प्राइस में फिर निकल जाता हूं और 4-5 हजार का प्रॉफिट भी कमा लेता हूं। फिर वेट करता हूं, मार्केट जब फिर ऊपर जाता है ना, फिर बाय करना शुरू करता हूं। इसमें भी मैं थोड़ा ये गेम खेलता हूं। लेकिन ट्रूली स्पीकिंग, जो न्यू कमर्स है उनको ये गेम करने का जरूरत नहीं है। अगर आप 40 लाख है तो आपका अगर इनकम 12 लाख रुपया साल में आता है, 10 लाख, तो आप 2-2.5 लाख रुपया अगर इंश्योरेंस करते हो ना, दैट इज पीस ऑफ माइंड। अगर जैसा हुआ 22 मार्च को, फ्रॉम कितना 30% तक या 40% डाउन हुआ ना, आप शायद उस दिन
7-8 लाख रुपया का प्रॉफिट लेकर निकल जाओगे, और वो 7 लाख रुपया आपको A5 जो लॉट बाय किया ना उसमें मिल जाएगा। आप देखिए 3000 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 25, 7.5 लाख। अगर 3000 पॉइंट भी 16,000 से 3000 पॉइंट माइंड 3500 क्यों ना, आपको जो प्रीमियम दिया ना उसका भी ध्यान रखना है, तो यू विल गेट बिग मनी। सो ये जो बिग मनी है ना, आप उसको कब यूटिलाइज करोगे? व्हेन यू आर बाइंग एट 420 स्टेट बैंक, बाइंग टाटा स्टील एट 1200 रुपीज, उस समय आपको 900-800 में मिल रहा है, तो व्हाई यू विल नॉट टेक पोजीशन एट दैट टाइम एंड यू मैनेज योर ट्रेड्स एंड सेल योर कॉल एट द रिड्यूस रेट। सो दोज आर द अपॉर्चुनिटी। जब गिरता है आपका भले ही कुछ पैसा जाता है, लेकिन दैट गिव्स यू मच मोर पीस, गुड नाइट स्लीप। So that is the reason why I say that some protective put should be buying if your trading capital is high. अगर आपका 15 लाख 10 लाख है तो डोंट बॉदर। 8-10 लाख 15 लाख के लिए आप क्या करोगे? उसमें कोई मतलब नहीं है, उसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। खरीद सकते हो, एक लॉट ले सकते हो, बट एक पुट ले सकते हैं उसको। लेकिन इसके बाद मैं एक इम्प्रोवाइज फॉर्मूला लाया। आपको मेरा एक वीडियो है, मैं शायद 3 महीना पहले लाया, बहुत सोचने का बाद उसको मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ फिर लाता हूँ। मैं सर आई एम नॉट ए जनरल यूट्यूबर लाइक मेनी ऑफ अस देयर। मैं हर एक हफ्ता नहीं लाता हूँ। आज पहले मैं हर एक हफ्ता लाता था, मेरा दिमाग जब खत्म हो गया कि और कुछ ज्यादा नहीं बता सकता है ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी के बारे में, आई स्टॉप मेकिंग वीडियोज। जबरदस्ती वीडियो नहीं बनाना है, वीडियो वाला वो यूट्यूब से पैसा मेरे को नहीं चाहिए। हमको अगर कोई नए ओरिजिनल आइडिया होगा तो मैं वीडियो बनाता हूं। तो ये जो बताया कोठारी जी ने बहुत बढ़िया उसको एक्सप्लेन किया। जो शेयर अभी कभी सीएसपी हो जाता है, इन द मनी हो जाता है, डोंट बाय द फुल लॉट, नेवर बाय फुल लॉट। फ्यूचर होगा तो क्या ना, पूरा एक लॉट ले ले तो फ्यूचर इज डेंजरस। इन द मंथ ऑफ February to April आई बुक 7 लाख रुपीज लॉस बिकॉज ऑफ लॉस इन फ्यूचर। क्योंकि रात में मेरे को सपना आता था, भाई ये 7 लाख कहीं 17 लाख तो नहीं हो जाएगा। हाँ, इससे सच्चाई है। आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट ए, मेरे को चार्ट बाट कुछ नहीं है, मैं तो सीधा फंडामेंटल के ऊपर मैं इन्वेस्ट करता हूं। आई नेवर, मैं अभी IDFC में लिया था, लास्ट 4 दिन पहले मैं 35,000 रुपया का लॉस बुक किया, क्योंकि मेरा गलती है। मैं थोड़ा प्रॉफिट, मैं ग्रीड में, मेरे लालच में मैं IDFC में मैं ट्रेड ले लिया था। तो ऐसा मैं नहीं करूंगा। मेरे को सिर्फ जाना है द टॉप क्लास शेयर, जो कि गिरेगा भी तो कोई चिंता नहीं है। बॉस अगर रिलायंस 2100 चल रहा है, 1500 होगा, 1400 होगा भी, मैं कभी बेचूंगा नहीं। टाटा स्टील अगर 900 होगा, 800 होगा तो मैं बेचूंगा नहीं, फॉर दैट रीजन। तो इसीलिए आप प्रोटेक्टिव पुट लोगे ना, इट विल गिव यू सम पीस ऑफ माइंड डेफिनेटली, बट डोंट बॉदर इफ इट इज द कैपिटल इज लेस देन 15 lakhs or 10 lakhs, डोंट बॉदर अबाउट दैट। थैंक यू सर, थैंक यू। बेसिकली ये कि दिसंबर का पुट खरीद लें। हाँ, दिसंबर का पुट खरीदना है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मैरिड पुट क्या होता है। ये तो प्रोटेक्टिव पुट हुआ, मैरिड पुट क्या होता है। मैरिड पुट एक तो इंटरेस्टिंग चीज है, कंसेप्ट है। मैरिड पुट का मतलब यह है, आप दिसंबर में मान लीजिए इसको आप बाय करते ना, उस समय 500-600 में नहीं मिलता है, वो आपको 800-900 में मिलता है। लेकिन इतिहास बताता है, हिस्ट्री सेज दैट मार्केट जब क्रैश होता ना, रेयरली इट गोज बिलो 50%, ठीक है ना। उस समय अगर 12,000 था तो मैक्सिमम 7,000 8,000 तक जाएगा। तो उस समय हम क्या करते हैं, जब हम इसको बेचते हैं तो थोड़ा पैसा कमाने के लिए हम क्या करते हैं, 8,000 का या 9,000 का जो पुट है ना, उसको हम सेल कर देते हैं। तो हमारा जो कॉस्ट है ना थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, लेकिन हमारा इंश्योरेंस भी उस हिसाब से रिड्यूस हो जाता है, 12,000 से लेकर 8,000 तक। लेकिन आप अगर उसको नहीं करेंगे तो 12,000 से 0 तक जाएगा, तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 उतना प्रॉफिट कर लेंगे, जो कि होने वाला नहीं है। तो मैरिड पुट भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन आई गो फॉर प्रोटेक्टिव पुट ओनली। सर ये जो प्रोटेक्टिव पुट में, सॉरी सर, जो आप प्रोटेक्टिव पुट में मार्जिन पूछ रहे हैं कि मतलब 15 लाख तक होना चाहिए, एक स्क्रिप्ट में 15 लाख इन्वेस्टमेंट या ओवरऑल? सर एक नहीं, आपका कैपिटल कितना है। मान लीजिए आपका कैपिटल जितना है ना, तो आपका एक माने जो पुट है अभी 16,000 का, मतलब क्या, अभी मार्केट चल रहा है 16,000 के आसपास, तो 16,000 का अगर आप 50 कर रहे हो ना, उसका वैल्यू क्या है,
16,000 का एक पुट का वैल्यू इतना है, 16,000 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ, एक यूनिट में कितना रहता है, 50 रहता है ना, 16,000 इंटू 50 दैट इज 8 लाख। तो 8 लाख का वो इंश्योरेंस है। So accordingly, you have to buy the put. No, sir. Earlier, we talked of a concept because we normally do options trading by shorting put only and then making money. So the question comes, all the put buyers are losing and we continuously gain. So whenever I take a position in a particular script, also I have to protect myself by buying a OTM for OTM put and then protecting for each positions. But your talk today talks about the Nifty. Overall, suppose I have say 40 lakhs investment in equity. So how to protect that investment when when there is a black swan or a March 2020 kind of an incident? Okay, but in the normal case, normally we are not worried much about equity investment because even if there is a black swan, it will come back after 3 months or 2 months, whatever it is. We are more worried. About our positions, whatever positions we are taking, on month-to-month expiry or whatever. So for that also, this will help. Taking a Nifty, buying a protective put for December 2021 and then doing it. सर रामकृष्णन जी, उसमें प्रॉब्लम क्या ना, अगर एवरी ट्रेड के लिए मैं एक प्रोटेक्टिव पुट खरीदूंगा ना, भले ही ओटीएम है, मेरा प्रॉफिट कितना होगा? नॉर्मली मैं क्या करता हूँ ना, आई एम ए वेरी फास्ट चर्नर। मैं आपको बताना, एवरी डे एनी गिवन डे आई हैव गॉट 50 पोजीशन। मैं कोठारी साहब का है कि 80-90% तक प्रीमियम गेन होता है तब निकलना है। मैं तो 50%, अगर मेरा कभी कभी होता था मैं 3-4 दिन में 50% गेन होता है। अगर मेरे को 8,000 रुपया का मिला है और 4,000 रुपया मिल गया 3 दिन में, आई विल नॉट वेट फॉर 27 days. Okay. Immediately shift to another opportunity where I get another 8,000 I will collect. So उसमें से 4,000 निकालूंगा। Yeah, I got it. So I normally I go by I post my trades free of cost in all my social media platform. मैं जो भी करता हूँ, जो लॉस करता हूँ बताता हूँ, जो प्रॉफिट करता हूँ वो भी बताता हूँ, क्योंकि I should be very transparent. Otherwise you won't believe me what I am doing. So each and every trade in one account, जो मेरा मेजर अकाउंट है ना, उसमें मैं उसको पोस्ट करता हूँ। सबका करना मेरे लिए ह्यूमनली नॉट पॉसिबल बीइंग ए वन पर्सन, ठीक है ना? तो मैं उसको करता हूँ, तो उसमें आपको पता चलेगा। मैं इतना फ्रीक्वेंटली करता हूँ क्योंकि मैं कभी-कभी मेरे को लगता है ना ये शेयर अभी नीचे जाने वाला है ना, जस्ट अंदाजा हुआ नीचे जाने वाला है, तो हो सकता है कि सीएसपी के हिसाब, लेकिन मैं शायद 2,000 रुपया लॉस करके निकल जाऊंगा क्योंकि मेरे को लग गया कि साला नीचे जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, मेरे को जाएगा ही जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा 2,000-4,000 रुपया लॉस। गुड नाइस, आई गॉट इट। आईडीएफसी में पहला लॉट लिया, हार्डली 2,000 शेयर लिया। मैं 65 का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कॉल सेल किया, अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर गिरते गया 57, 58, फिर मैं 62 तक आ गया। फिर उसके बाद देखा कि 50, फिर जैसा गिरते गया मैं बोला चलो 55 हो गया ना, चलो यार नमस्ते 35,000, क्योंकि मैं तब तक पूरा लॉट नहीं लिया था। दैट इज द एडवांटेज व्हाट मिस्टर कोठारी और हम बोलते हैं, डोंट टेक द फुल लॉट। तो मैं लिया था, मैं 35,000 रुपया बुक लॉस कर दिया और उसके बाद कल मैं देखा कि 52, 53 हो गया है, लेकिन उसके बाद ऊपर आया था, थोड़ा आया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सो इफ यू आर चूजिंग ए बेस्ट शेयर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 180 हुआ था लास्ट ईयर जून महीने में, लेकिन आज 420 में है। गुड शेयर विल बाउंस बैक, ऑलवेज इट विल बाउंस बैक, बिकॉज दैट इज द रीजन व्हाई आई सेड, मैंने कोई आदमी मेरे को डिस्प्यूट कर सकता है, ये ऑप्शन व्हील ट्रेडर ट्रेडिंग इज ए इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, इट इज नॉट ए जो नॉर्मल स्पेकुलेटिव वो जो होता है वो नहीं है। आई एम ए इन्वेस्टर, बेसिकली आई एम ए इन्वेस्टर, but instead of that price I am going for a lower price. I always consider myself an investor first, trader second. Good, thank you. मेरा एक इसमें छोटा सा व्यू था, जो 50% और 80% वाला जो अपन ने बात किया ना, तो मेरा एक्सपीरियंस किया है ऑन द बेसिस ऑफ मेरा जो लास्ट 1 ईयर का बता रहा हूँ मैं, कि जो 50% वाले में मैं प्रॉफिट करके भी मैं भी काफी निकलता हूँ मैं। और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जो 50% है ना, वो इनवेरिएबली जीरो होने वाले होते हैं, बिकॉज दे आर द गुड ट्रेड।
मैंने क्या देखा है 50% में निकल गया और 50% छोड़ दिया मैंने। No, PK ji, I thought it is only learners will tell this. आजकल मैं करने लगा हूँ, आजकल मैं एक्सपायरी के लिए वेट कर रहा हूँ, ओनली कवर्ड कॉल में। Nowadays I am waiting for covered call. Let me give an example of what has happened yesterday with granules. Granules का मजा आप देखे होगे। मैं granules लिया था 350 में प्राइस जब था, तो फिर मैं देखा कि अरे ग्रैन्यूल का क्या चक्कर हो रहा है, 340 42 ऐसा कुछ था। मैं थोड़ा एडिशनल करके ना उसका कॉस्ट को मैं 339 को ले आया, ठीक है। फिर क्या हुआ ना, बीच में अच्छा इंफॉर्मेशन आया, वो तो 342 345 अगेन 326 सॉरी 336। सडनली कल क्या हुआ, ऊपर चला, पता था ऊपर जाएगा, पता था। तो क्या प्रॉब्लम हुआ मेरे को, मैं क्या किया था ना, मेरा जो नीचे नीचे जा रहा था ना, जो आपने बताया ना, मेरा कॉल को मैं पहले 370 में रखा था, फिर उसका प्रॉफिट बुक करके 360 में आ गया, प्रॉफिट बुक करके 350 में आ गया। जब 350 में आया तो मार्केट जब बूम किया, मेरा जो 350 वाला जो प्रीमियम था वो ह्यूज हो गया। क्यों ना, एक दिन में हुआ ना, 15-16 रुपया अगर एक दिन में आपका शेयर बढ़ जाएगा 350 वाला अमाउंट में, इट इज अ बिग जंप। तो मेरा उसमें 10,000 का लॉस हुआ और यहां मेरा 25,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मैं 15,000 प्रॉफिट में निकल गया, ठीक है 15,000। लेकिन अगर मैं वेट करता तो थोड़ा ज्यादा हो सकता था, लेकिन मेरे को कैपिटल का भी जरूरत है, क्योंकि मैं बहुत सारा शेयर में आजकल कवर्ड कॉल करता हूं, बिकॉज कवर्ड कॉल इज द ओनली ट्रेड वेयर आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी लॉस। कुछ भी हो जाए दुनिया में मेरे को, हाँ, क्योंकि मेरा जो इक्विटी है, आई डोंट बॉदर अबाउट दैट, आई विल स्लीप ओवर इट। मेरा जो इक्विटी है बाय कर क्यों, सो आई डोंट टेक दैट इज अ बुक। मैं जब तक बुक लॉस बुक नहीं करता हूं, इट इज अ पेपर लॉस, जस्ट दिखता है लॉस, एक्चुअल लॉस नहीं है। ऊपर आएगा, अच्छा शेयर है, ऑल द बेस्ट शेयर, इंडिया का जो टॉप 10-15 शेयर है मैं उसमें करता हूं, तो वो है। तो मेरा जो है कवर्ड कॉल में, अभी टाटा स्टील देखिए सडनली ऊपर गया है, मेरा टाटा स्टील का बाय प्राइस है 1205, कल 1239 में बंद हुआ है। अब मेरा जो मैंने जो कॉल सेल किया था उसको मैं ऊपर कर दिया था, पहले था 1250 का, अभी उसको 1280 कर दिया हूं। अब क्या होगा, हो सकता है कि कल मेटल शेयर जैसा जा रहा है, कल वो 1280 के आसपास या उसको क्रॉस कर जाए। तो व्हाट आई विल डू, अभी मेरे को कैपिटल का जरूरत नहीं है, आई हैव गॉट एनफ कैपिटल इन माय बैंक फॉर द ट्रेडिंग। मैं वेट करूंगा, जो आप बोल रहे हो ना, आई विल वेट टिल एक्सपायरी डेट, और तब क्या होगा, जो मेरा जो प्रीमियम लॉस हो रहा है, सडन इंक्रीज होगा शेयर प्राइस में, जो प्रीमियम लॉस हो रहा है इन माय कॉल, सो इट विल ग्रेजुअली इट विल रिड्यूस, उसका थीटा डी के धीरे धीरे होने, वो मैंने जो प्राइस है, मान लो 1300 रुपया हो गया, तो 1300 रुपया में मेरा जो 1280 का मैं 16 रुपया का बेचा हूं, तो वो 1296 है। भले ही वहां मेरे को 8-10 रुपया का लॉस होगा, लेकिन मेरा इक्विटी में प्रॉफिट होगा कितना, 1205 से लेकर 1310 तक। सो दैट प्रॉफिट आई विल टेक फ्रॉम इक्विटी, एंड वो जो आज अगर करूंगा तो आज मुझे 20-25 रुपया का चुना लगेगा, लेकिन मैं अगर एक्सपायरी वीक तक वेट करूंगा, वो जो डिफरेंस है ना, घट के बहुत कम रह जाएगा। तो मेरे को सिर्फ जो 16 रुपया का प्रीमियम का ऊपर में जितना मार्केट गया उतना ही लॉस होगा, और वो लॉस मेरे को इक्विटी से मिल जाएगा। Very good strategy, Mr. Mohanty. In fact, I would rather appreciate the stand which you have taken. The reason being is that for those members who are not aware, the last steel cycle was from 2003 to 2008, and the price of Tata Steel went up by 9x and SAIL went up by 35x. So the steel cycle has just started. So you can imagine the amount of profit will be generated from the steel sector. Exactly, I agree. एंड टाटा जी, आपका फ्यूचर वर्सेज ओडब्ल्यूएस में क्या व्यू है आपका? अच्छा, एक चीज मैं करने वाला, काफी लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर वर्सेज ओडब्ल्यूएस में आपका क्या व्यू है? मैं फ्यूचर नहीं करूंगा, मैं खाली एक फ्यूचर करता हूं, वो है जो कि कभी ऊपर जाता ही नहीं, वो है आईटी से नहीं, आईटी से मैं प्रतिज्ञा कर लिया हूं, मैं आईटी में जाऊंगा नहीं, क्योंकि इतना बोर होता हूं मैं, पूछिए मत। अरे साला प्रीमियम भी मिलता नहीं और वेट करो एक महीना 6,000 रुपया के लिए, नहीं चाहिए हमको, आई डोंट वांट, बट दैट इज द सेफेस्ट, आईटीसी इज द सेफेस्ट, एंड आई थिंक आईटीसी विल डेफिनेटली गो टू 240-250 लेवल इन अ ईयर, आई नो दैट, बट मेरे को उतना
दम नहीं है उसके लिए इंतजार करने के लिए। तो हाँ, मैं कल कुछ करने वाला हूं, मैं आपको बताता हूं। मैं टाटा स्टील में जैसा अगर मैं देखूंगा कल टाटा स्टील इज गोइंग बियॉन्ड 1260 का ऊपर गया ना, मैं 1160 का पुट मैं सेल कर दूंगा, क्योंकि आई एम रेडी फॉर ए सेकेंड लॉट। और इसीलिए सेल करूंगा, जो मेरा जो कॉल का जो 16 रुपया है वो बढ़कर 24-25 रुपया हो गया होगा, तो उसका जो डेरिवेटिव सेगमेंट में जो लॉस होने वाला है ना, ये अभी मिल रहा है 10-12 रुपया है, शायद मुझे कल 10 रुपया में भी मिल जाएगा ना, कम से कम 10 रुपया का तो लॉस में वहां मैनेज कर दूंगा। अगर 1300 का ऊपर क्रॉस करेगा तो जो लॉस होगा तो उसको मैनेज कर दूंगा, और अगर नीचे आया तो इसको मैं स्टॉप लॉस लेकर निकल जाऊंगा, जो 1160 का जो मैं पुट सेल करने वाला हूं परसों। आपका अदानी शेयर पे क्या व्यू है? आपका अदानी शेयर पे क्या व्यू है? अदानी, हाँ अदानी शेयर के बारे में इतना बोलूंगा, इतना बढ़िया व्यू है कि पिछले महीना में 3.5 लाख रुपया का लॉस बुक किया। And at the same time, Achha, Mohanty ji, you said you are putting all your holdings and all in social media. I didn't get it. That is a different channel or you put it in our group? देखिए, मेरा ओपन चैनल है। मेरा टेलीग्राम में एक है रंजित ऑप्शंस ग्रुप करके है। अच्छा, okay. और मेरा ट्विटर में माई रंजित करके मेरा अकाउंट है। और व्हाट्सएप में क्या ना लिमिट है, दैट इज द रीजन व्हाई मैं व्हाट्सएप में ज्यादा लोगों को ले नहीं पाता। वो थोड़ा बहुत जब मिल जाता मेरे को 256 मैक्सिमम 256 है ना, 256 तो उसमें जगह होता तो कोई मेरे को क्या होता ना, उसमें मैं सिर्फ उन्हीं को डालता हूँ जो कि थोड़ा एक्सपीरियंस लोग हैं। तो क्या ना, वहां थोड़ा हाई लेवल का वो लोग टॉक करते हैं, तो अगर न्यू भी चले गए ना, उनको समझ में नहीं आएगा कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। मेरे को बड़े मुश्किल से डाला इन्होंने। I had to request him कि भैया डालो मेरे को उस ग्रुप में, then only taken that group. Sir, you do in index also trading? No, I was doing index level trading. Then I found that जितना प्रॉफिट किया था साल का अंत में उतना लॉस कर चुका हूँ। That is the reason. लेकिन मैं 2 वीडियो बनाया हूँ, उसमें क्या होता है ना बॉस, सर ऐसा क्या होता है, सुब्रमण्यम साहब बता रहे, पूछा ना मेरे को। शेखर शेखर सर, अच्छा व्हाट इज द प्रॉब्लम यू नो इन दैट, मैंने मिनट टू मिनट यू हैव टू बी अलर्ट। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, वेडनेसडे अबाउट 12 o'clock से लेकर 2:30 बजे तक ना मैं क्या करता हूँ, मैं कॉल ओनली सेल करता हूं 1000 पॉइंट 700 पॉइंट अबव, जो भी स्पॉट प्राइस है। बैंक निफ्टी, आई डोंट डू निफ्टी है, निफ्टी में 10 रुपया के लिए कौन काम करेगा, तो बैंक निफ्टी का थोड़ा मिलता है। मैं 10-12 रुपया जब होता है ना मैं करता हूं, देन मैं उसको देखते रहता हूं क्या हो रहा है, क्योंकि आप अगर उसमें स्टॉप लॉस लगाओगे ना, देयर विल बी स्पाइक्स ऑफ 100 रुपीज और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो यू कैनॉट, आप उसमें स्टॉप लॉस लगाना डेंजरस है आपको, लेकिन देखना पड़ेगा, और नहीं लगाओगे तो मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूं। अबाउट 7 years बैक मैं करता था, और उसमें मैं 2 रुपया का मैं कॉल सेल किया था, एंड दैट 2 रुपया का इतना बड़ा स्पाइक आया, इट बिकम 200 रुपीज। तो मेरा कितना लॉस हुआ होगा, यू कैन इमेजिन दैट 2 रुपीज प्रीमियम बिकम 200 रुपीज विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स? यस, ये होता है। मैं भी नहीं करता निफ्टी में, आई डोंट डू इट ऑल। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ओनली अगर आप बहुत अच्छा हो ना करो, क्योंकि उसमें भी पैसा अच्छा आता है, माने एवरी वीक यू कैन अर्न, आपका जो भी कैपिटल आप लगाओगे। लेकिन आजकल क्या, आजकल तो सब खत्म कर दिया 75% मार्जिन। पहले जब 0 था ना, तब बहुत सारा मतलब मल्टीप्लाइड बाय 20x तक हम लोग को मिल जाता था। अब तो 6x 7x मिलता है, उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। 1 लाख रुपया देकर क्या मेरे को लेना है 250 रुपया, आई डोंट वांट दैट, फॉरगेट दैट, आई डोंट वांट दैट। सो आई स्टॉप दैट। जैसा ही वो मार्जिन से भी लाया ना, उसके बाद आई स्टॉप इट। आई एम प्योरली इनटू दिस अपना इंडिविजुअल शेयर, ठीक है। और हाँ, एक चीज है, कभी मेरे को ज्यादा प्रॉफिट इक्विटी से आ जाता है, आई डोंट कीप मच मनी विथ, पूछ रहे थे ना, पैसा ज्यादा नहीं रखता हूं मैं, कैश नहीं रखता हूं मैं ब्रोकर के पास। मैं इमीडिएटली बाय इवनिंग उसको मैं ट्रांसफर करता हूं। जैसे मनी आ जाता है 2 दिन का T+2 डे में, मैं मनी निकाल लेता हूं, मैं निकाल लेता हूँ। जो क्यों ना इक्विटी में मेरा काफी पैसा ब्लॉक होकर रहता है, वो जैसा रिलीज होता है देन इट इज बैंक बैक टू बैंक। तो मैं चाहता नहीं कि मेरा खाली पीली वो पैसा पड़ा रहे ब्रोकर के यहाँ, जरूरत नहीं। जब होगा तो 1 मिनट में हम
डाल सकते हैं पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मुझे पीक मार्जिन का क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज पीक मार्जिन कॉन्सेप्ट? सर पीक मार्जिन ये है, मान लीजिए आज आपके पास एक होल्डिंग में शेयर है, हाँ, आपका पास 500 शेयर्स है, ठीक है, उसका जो है ना उसका दाम कितना है, 400 रुपया है, ठीक है ना। सो यू गॉट, सॉरी 100 रुपीज, 500 into 100, सो यू गॉट कितना रुपया हुआ, 50,000 रुपीज ना, ठीक है ना, 500 ठीक बोला ना, 500 into 100, so you got 50,000, you sold it। तो क्या करता है ना, 80% आपको क्रेडिट होगा, कितना, 80,000 इंस्टेड ऑफ 50, सॉरी आपको कितना क्रेडिट, 50,000 का 20% रख लेगा, हाँ 40,000 आपको क्रेडिट होगा। सपोज यू वांट टू बाय बैक दैट शेयर ड्यू टू सम रीजन, यू कैन नॉट बाय बैक, क्योंकि वो जो पैसा है ना, आपको तो पैसा मिलेगा T+2 डे में, अगर आप उसको कर लोगे ट्रेड, उससे ज्यादा 50,000 मिला है, आप उससे ज्यादा कर लोगे ना, आपको एवरी 1 आवर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE वो लोग चेक करते हैं आपके पास मार्जिन है कि नहीं नया ट्रेड लेने के लिए। इफ यू आर नॉट टेकिंग, इट इज नॉट योर ब्रोकर, बट NSE विल चार्ज यू ए पेनल्टी, आप अगर उससे ज्यादा खरीद लिए हो। नहीं, यू मीन इन इक्विटी आल्सो? इक्विटी में भी लॉस? इक्विटी में नहीं सर, डेरिवेटिव में, इक्विटी में भी, है सर, इक्विटी में भी एवरी 1 आवर, मैंने आपका जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, 1 घंटा में जितने भी इंडिया में, सारा वर्ल्ड में जितना इन्वेस्टर है, सबका देखते रहते हैं, वो कंप्यूटर देखते रहता है, जैसा ही कि देखा कि आपका मार्जिन कम हो गया, पेनल्टी ठोक देगा थ्रू योर ब्रोकर। अच्छा, और एक चीज है, कुछ बहुत ही बुद्धिमान ब्रोकर है, बिना पेनाल्टी ठोके अपने तरीके से भी वो लोग चोरी करना कोशिश करते हैं। थोड़ा पूछ लेना, दिखा दो मेरे को निफ्टी का जो आया ना पेनाल्टी मेरे नाम पे, वो वाला पेपर मेरे को भेजो। अच्छा, नॉर्मली मैंने ये जो हुआ ना मेरे साथ ऑफस्टेक्स के साथ, मेरे को बहुत चीड़ है। ये लोग कभी कभी कोशिश करते हैं कि छोटे इन्वेस्टर को बड़े परेशान किया जाए। मार्जिन का whatever they are deducting, बात कर दे दो ना प्लीज। या क्वेरी प्लीज सर 2% से टॉकिंग। हां सुब्रमण्यम सावंत सेकर जी, हां सुब्रमण्यम जी, थोड़ा 1 मिनट है। हां sir, I have 2 queries. Number 1 is that this black swan event we're talking about, equity is a protective cover. In the case of options, when you're taking various positions on various equities, how is a protective cover going to help those positions, sir? Actually, I'm just taking on what Ramkrishna sir was asking that query. I'm going the same thing again. I think we didn't get a clear answer on that. Actually, how? Sir, first of all, I'll tell you. अभी तो मैं जो बताया, whatever you are not actually 100% you cannot get. I said na, some shares will fall more than other shares. So whatever protective put you buy, it will give an average insurance. It is not a full insurance you won't get. You are lucky, then you'll get. Otherwise, you will not get it. But फिर भी something is better than nothing on that principle. And if it is there is a fall of 2,000, 3,000 point, I think that time you will realize that what you have done. That time you will realize. So better. 15 सर एग्जांपल बता रहा हूँ सर। फॉर एग्जांपल 1 शेयर में मेरा प्रीमियम मैंने सेल किया 15 रुपए का सर, ओके, and the market goes on a toss and 15 rupees can become 1,500 rupees also sir per share. minus में 1,500 जा सकता है, इधर से some limit. No, it can go to any extent. You are right. Any extent, sir. That's right. लेकिन मैं आपको पता है ना, कभी कभी अगर पता चलता है ना बॉस, कभी कभी अगर पता चलता है ना मार्केट सचमुच ऐसा जा रहा है, एंड सम शेयर मैंने कभी कभी वी बुक लॉस आल्सो। बुकिंग लॉस OWS में यू शुड नॉट सेल योर कैश सिक्योर्ड पुट, बट अगर आप देखते हो कि नहीं मेरे को झटका लगने वाला है बहुत ज्यादा, आई डोंट हैव दैट मच कैपिटल, प्लीज बुक लॉस। दैट विल मैंने प्रिंसिपल का हिसाब में नहीं करना है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल इफ यू थिंक दैट यू कैनॉट मैनेज इट देन बुक लॉस, यू कीप ए स्टॉप लॉस। दिमाग में रखिए, एक्चुअली मत रखिए, दिमाग में रखिए, अदरवाइज इट विल हिट। मैं कभी कभी देखा हूं, मैं लगा कर बैठा हूं और वो हिट हो गया फिर ऊपर चला गया फिर, तो वो कभी मत कीजिए। आपको लगा इस प्राइस आ गया, ओके हो गया 5,000 5,500 हो रहा है, ठीक, चलो निकल जाओ, ठीक है, मेरे को उससे ज्यादा नहीं। मैं तो कभी कभी सर मैं बताया ना
अपना फ्यूचर में 7 लाख का मैं लॉस लिया। अदरवाइज मेरा अप्रैल में लॉस नहीं होता इस साल का। मैं हर एक महीना प्रॉफिट करता हूँ, अप्रैल में लॉस हुआ है। Okay. That is one thing. Second, another question, sir, the debentures are not accepted as collateral, sir. I think Jirodha takes it ना। प्रदीप जी, ये वाला आंसर आप दीजिए। डिवेंचर नहीं है, वो पूरा लिस्ट है ना। जिरोधा में अगर जाओगे कंसोल में, इट विल गिव द टोटल लिस्ट ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग योर गोल्ड बीस, ये वो सब सिक्योरिटी का लिस्ट दे देगा वो, जिसपे वो कितना कितना हेयर कट लगा के आपको मार्जिन दे रहा है। तो वो जाके चेक कर लो आप। जस्ट गो टू द जिरोधा साइट एंड देन यू गेट एवरीथिंग। शायद डिबेंचर पे नहीं है, तो डिबेंचर ट्रेडिंग नहीं होता ना, प्रॉब्लम ये है। गूगल कर लीजिए डिबेंचर में ट्रेडिंग कहाँ होता है, तो कैसे उसको अगर आपने प्लेज किया तो कैसे सेल करेगा जाके? डिबेंचर का ट्रेडिंग नहीं होता है, बहुत इलिक्विड होता है वो। डिबेंचर का जो ट्रेड होता है ना, बहुत इलिक्विड होता है। हाँ, तो उसमें नहीं मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा। एक्सट्रीम इलिक्विड होता है वो सब। पर डिबेंचर खरीदी क्यों रहे हो भाई? OWS लगाओ ना तो ज्यादा पैसा कमाओगे। और एक जमाने में था, एक जमाने में डिबेंचर में फायदा होता था, डोंट नो। मुझे याद है एक जल विद्युत योजना, उसी की बात कर रहा हूं। उसमें 18% इंटरेस्ट था, जेपी का था उस समय, कुछ था उस समय। ये श्रीराम का 10.5% का पड़ा था, सर उसी की बात कर रहा था मैं, कि 10 लाख का पड़ा था, तो उसी की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही पड़ा है, उसको भी लगा देते प्लेजिंग सोचा, लेकिन नहीं ले रहे थे। हम जरूर रिप्लाई करता हूँ कि प्लेजिंग में आता नहीं है, प्लेजिंग में हाइड करते हो ना, वो आपको लिस्ट मिल जाएगा, वो थोड़ा जिरोधा की साइड पर लिस्ट मिल जाएगा। सुब्रमण्यम सर, मैं आपको वन थिंग आई विल टेल यू, margin to be used for few days. You know that this is going to go up. It is a short term arrangement. You should not take it as a long term arrangement. ठीक है ना? Short term आपके पास पैसा का जरूरत है, आपको फायदा हो रहा है, you take that margin. आपको फायदा होगा. But if you think for a whole month and for 5 years, 4 years together, you will keep that margin, आपको penalty लगते जाएगा और वो they will be earning at your cost. Don't do that. Okay. But short term you should have margin. कर सकते हो आप चाहो तो। मैं करता नहीं, individually I don't do it. मेरा एक principle है, मेरा capital X amount है, I use 60% in trading, 40% in a bank, in a sweep account. Sweep account gives FD rate, not 3% वाला. That gives FD rate. I'm a senior citizen, so I get a FD rate. And जिस दिन चाहिए, जिस moment में उसको निकालता हूँ, there is no penalty. So I take 60%, 40 और कभी 70, 30 भी करता हूँ. So if my capital today is 70 lakhs, that means I have got 30 lakhs in my bank. 60 from stocks, right? 60 in trading. मेरा broker account में all, even if it is more than margin, मेरा जो भी होता है, actually क्या होता है ना, जो 60 lakhs का मैं ले आया हूँ ना, उसमें जो monthly profit होता है ना, that gets added to it. Okay. So gradually that goes up, and moreover, the moment you are selling your CSP or call, the premium amount is also getting added to that. So you get some users. That is the reason. So और अभी correct. So माने your margin you should use as a less, you keep it, but don't use it for a very longer period. शेखर जी, आपका कोई सवाल था? Yeah, some this margins which they are deducting automatically once this thing is squared off, it gets returned totally, or how is it, sir? We need to check that also. Totally, sir. Totally. No, but now and then we need to check, or it happens automatically. Automatically. अगर आपने कोई ऑप्शन सेल किया है, तो आपको प्रीमियम आपके अकाउंट में आ गया है, और अगर उसको वापस बाई स्क्वायर करोगे, तो वो आपके अकाउंट से उतना पैसा चला जाएगा और बैलेंस पैसा आपके अकाउंट में रहेगा ऑटोमेटिकली. ओके. इससे कंप्यूटर कोई ह्यूमन टच नहीं रहता है, वो ऑटोमेटिकली है. Okay. This is for Mohanty sir. Sir, you are investing in gold, Bs and forex also. This covered strategy. Forex I never do that. अब मैं 2 बार किया हूँ. एक बार मेरे को 7,000 रुपया लॉस हुआ तो मैं बंद कर दिया. आप लोग 7,000 में बंद कर दिया. यहाँ पे इतना हजारों का लेता हूँ. मेरे को फॉरेक्स समझ में नहीं आता है. मेरा फोकस इज ओनली वन, ऑप्शन विल स्ट्रेटेजी, नथिंग एल्स. और उसमें आजकल वो जो इम्प्रोवाइजेशन किया है वो, एंड जो स्ट्रैंगल वाला इम्प्रोवाइजेशन का स्ट्रैंगल जो बताया आपको कोठारी जी थोड़ा बताया, उसके बारे में भी आप वीडियो देख लीजिएगा मेरा. तो उस स्ट्रैंगल में भी थोड़ा पैसा आ जाता है. और स्ट्रैंगल कब निकलना है, कॉल कब पुट निकालना है, वो आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा. यू विल डू इट. इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट.
What about gold, sir? Gold? Sir, gold bees I don't buy it. I believe gold bees में मेरा रिटर्न जितना आएगा उसका तो एक महीना में मैं उतने ज्यादा डबल प्रॉफिट कर लूंगा in option strategy. Why should I put it? And I don't take any margin, as I told you, because always I told you 30%. Actually, I have got more reserve. Those are not my FDs. मैं FD touch नहीं करता. मेरा wife मेरे को गोली मार देगी. I don't touch FD. I touch that money which I can touch. Liquid only. सर एक क्वेश्चन है. टोटली सर वन क्वेश्चन. ये जो आप आईडीएफसी के साथ जो टाइप थे उसमें कुछ एफडी के साथ लिंक है, ऐसा कुछ है कि जस्ट एसबी में रखा है सर अभी? क्या आईडीएफसी ने क्या किया? आईडीएफसी में जो आप कैश रखते हैं ना सर, हम लोग एसबी में स्टार्ट किया था रखने का, तो उसके साथ भी कुछ स्विफ्ट अकाउंट बता रहे थे ना सर अभी, दैट इज लिंक एफडी टू दैट कैश एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ, यू नो. आईडीएफसी में भी कर सकते हो, आईडीएफसी में कर सकते हो, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, प्रॉब्लम ये हो गया है. वो बहुत कम हो गया. वो 7.5% दे रहा था, अभी वो 5.5 के आसपास दे रहा है. अभी देखिए मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा अकाउंट है. आई गेट 5.6%. आई गेट 5.6%. 1 ईयर का जो एफडी रेट है ना वो मेरे को मिलता है 6.5 या 5.6, मेरे को पता नहीं. वो सब वो उतना छोटा अमाउंट है ना, दिखता नहीं. लेकिन मैं थोड़ा पैसा जो वो बैंक है ना जो क्या बोलते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, that gives me 7.25% in fixed deposit, and in savings bank it gives 7%. Right. I keep the money not in state bank, but I immediately within जब पैसा आ जाता है within 20 minutes I transfer it to Ujjivan, because उसका savings bank में I get 7%. And आजकल मनी ट्रांसफर तो मिनट्स में होता है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनट्स में होता है. एक्चुअली उज्जीवन में और जो स्मॉल जेना से आई प्रेफर आरबीएल. आरबीएल में करीबन 6.25% जाता, तो आई प्रेफर आरबीएल में. मेरे को थोड़ा मैं किया नहीं, मेरे पास नहीं है. मेरे पास ऑलरेडी इतना बैंक अकाउंट हो चुका ना, मेरे को इनकम टैक्स वाला थप्पड़ मारेगा. आई डोंट वांट मोर, सो इट इज एनफ. आई हैव गॉट 7 अकाउंट्स. मेरे को नहीं चाहिए किसी में मैं 15,000 10,000 रुपया लेकर भी बैठा हूँ, तो फालतू का खाली वो क्रेडिट कार्ड के लिए लिया हूँ. आई एम ए ट्रैवलर एक्चुअली बेसिकली. तो मैं क्या करता था, बिकॉज आई एम ए ट्रैवलर, मेरे को लाउंज एंट्री ज्यादा चाहिए था, तो मेरे पास 15-20 क्रेडिट कार्ड है, और वो मेरा जो सिविल स्कोर को बड़ा करता है. जितना क्रेडिट कार्ड है ना, तो मेरा सिविल स्कोर इंप्रूव करता है. सो दैट अभी हाउसिंग लोन, अभी एक मैं हाउस देख रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को फायदा मिलेगा उस सब चीज का. अच्छा. इफ इट इज मोर देन 780 यू गेट बेनिफिट. मेरा 830-40 चलता है, मेरा 20 ऐसा चलता है. चलिए, एनी मोर क्वेश्चंस और वी विल फिनिश इट ऑफ. Sir, one last question. So regarding margins, I have a put OTM puts अगस्त और सितंबर की है सर. उसमें जीरो धाम में क्या होता है कि कोई ट्रेड नहीं होता उस पर्टिकुलर डे में, तो वो बहुत हाई लेवल पे दिखाता है कि इसका ये रेट चल रहा है, और मेरे लॉसेस, नोशनल लॉसेस दिखाते हैं. मैं आपको बताता हूँ, आपको कोठारी जी जो प्रेजेंटेशन दिया ना, और वो भी मेरा अपना वीडियो में भी है. नेवर गो फॉर अगस्त एंड सितंबर, दोज आर वेरी इलिक्विड. one of the 7 कंडीशन जो मेरा है, हाउ टू, किसमें आपको करना चाहिए, उसमें एक कंडीशन है लिक्विडिटी. आपके पास लिक्विडिटी नहीं है तो कोई मतलब नहीं, वो पैसा का कुछ वैल्यू नहीं है. जैसा कि नाल्को बैन हो जाएगा, बीएचईएल बैन हो जाएगा, आईबोल, तो उस समय आपको पैसा नहीं मिलेगा. आप 2 रुपया है, 4 रुपया है, आपका खरीद का प्राइस 3 रुपया है, क्या आपको 4 में जाना पड़ेगा ना? 2 में तो कोई देगा नहीं आपको, तो आपका तो 1 रुपया वहीं पर लॉस हो गया. So never go for August and September, except few share जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टीसीएस, इंफोसिस. इंडिया में 4-5 शेयर है जिसका कि लिक्विड है. रिलायंस है, ये लोग लिक्विड है. वो मैं मतलब आप ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ज्यादा लॉस कर लोगे उसमें. Don't Sir, I'm checking the OI there. There is some trades are going on, but what happens if a particular day no trade is happening? The zero dha shows that the current price is too high. So what happened? I have 4 or 5 such puts. तो एक दिन मेरे को दिखा दे कि मतलब मेरे को 2 लाख रुपए का मार्जिन शॉर्ट है, and I have to add more money in the zero dha account. And I know that I'm in profit because whatever the last trade happened a day before, I will be in a profit, and the share price is also very high. But ये बीच में मार्जिन खरीदने का या मार्जिन हमसे लेने का एक तरीका है क्या जीरो दहा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोग का ऐसा नहीं है. मैंने दैट आई एम श्योर, बट प्लीज डोंट गो फॉर बियॉन्ड 50 डेज. 45 डेज बोला, मैं 5 दिन का ज्यादा बोल देता हूं, लेकिन डोंट सेल ए माने कॉल और पुट समथिंग जिसका एक्सपायरी डेट बियॉन्ड 45-50 डेज.
आप सितंबर वगैरह का लोगे तो उसमें काफी लॉस हो सकता है, मैं आपको इतना बता देता हूँ, काफी लॉस हो सकता है। Okay. Avoid that in future. It is a learning process actually, Sumit ji. We all did that mistake ourselves. That's why we are telling you. Otherwise, I would not have been. मैं आपको बता भी नहीं सकता. नहीं मोहंती जी, इनका क्वेश्चन दूसरा था. इनका क्वेश्चन क्या है कि इन्होंने कोई एक ऑप्शन बेचा और उसके बाद में वो इलिक्विड हो गया, तो इलिक्विड होने की वजह से वो मार्जिन का रिक्वायरमेंट बढ़ गया, क्योंकि वो जैसा कि आपका जो नहीं हो रहा है, ट्रेड नहीं हो रहा है, तो मार्जिन का रिक्वायरमेंट बढ़ गया उनका, क्योंकि वो लास्ट रेट पे कैलकुलेट कर रहा है मार्जिन. वो क्वेश्चन पूछा. Not even on last trade. Last trade was like 20 rupees, 25 more, and suddenly वो 120 price दिखा रहा है, like it is on the upper band of that particular day or series. कौन सा वाला शेयर, कौन सा शेयर था? Right now Bajaj Finance and IRDC. तो जीरोधा अपने में भी एक तो पता नहीं कैसा एडजस्टमेंट करता है, पता नहीं. जो आज का जो रेट है, कल का रेट में आप देखोगे ह्यूज डिफरेंस है. तो क्यों होता है मुझे पता नहीं, मुझे भी पता नहीं क्यों होता है, लेकिन मैं भी इसमें 4 या 5 पुट अगर ऐसी ट्रेड में हो जाए तो वो हमसे मार्जिन और मांगता है सेम डे. वो मार्जिन मांग लेता है वो लोग कुछ एवरेज कॉस्टिंग करता होगा, उस हिसाब से करते हैं. सो आप थोड़ा अवॉइड कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा. अवॉइड कीजिए, अगले बार से मत कीजिए. होता जी आपके फाइनल रिमार्क्स. होता जी, और आपका वीडियो. My final remarks is I want to thank Mohanty ji and Kothari ji both. अरे उड़िया में बोलिए. मोहंती साहब आपनकर माने प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया आइतला, बढ़िया लागला. सर सबको समझने दीजिए. थैंक यू वेरी मच. I can understand. I know प्रदीप जी, आप तो ये सब एक्चुअली पहाड़ी थे, हम लोग को कुछ नहीं समझ में आता था. And Kothari ji very patiently, I have never seen Pradeep lose a school with anybody. And वो सुबह 8 बजे से 4 बजे वो लंच करते हैं, मेरे को पता है. तो कोठारी जी थैंक यू, एंड मोहंती साहब नमस्कार. बढ़िया. Thank you very much, sir. Kothari साहब and Mohanty साहब. Thank you all. Thank you very much. एक आपका प्रेजेंटेशन रखवाएंगे OWS पे, एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन आपका रखवाएंगे. नहीं ठीक है. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Like your frankness. Thank you so much. Like the frankness where you shared your losses also. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. और कोठारी जी, हाँ, आज बहुत दिन के बाद जल्दी छुट्टी हो गई सर क्लास की. जल्दी छुट्टी मोहंती जी के ऊपर था. मोहंती जी ने छोटा प्रेजेंटेशन किया. आज सभी पूरा मैच देखने का है. विंबलडन फाइनल्स. वो भी है, विंबलडन देखना है आज, फिर वो देखना है. छुट्टी हो गया. रात को 12:30 बजे वो चालू हो रहा है. आज सवेरे का मैच देखा या नहीं देखा? फिर अर्जेंटीना वाला